वो खुशियों की लहर, हर तरफ जनता गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पे सदा मुस्कान रहे। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, and welcome to this beautiful day. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome on behalf of Dr. K.N. Modi Foundation, Modi Nagar and Nibai, Rajasthan all together, who has clubbed all of us today for a webinar on tools of effective teaching and motivation during pandemic. My name is Vandana Rotela and I will be your moderator, and I'm really excited to be hosting this session today. So once again, for those who have joined us just now, I, on behalf of Dr. K.N. Modi Foundation, extend my heartiest welcome to all the attendees and invitees. It's my profound privilege to welcome Honorable Dr. D.K. Modi, sir, President Dr. K.N. Modi Foundation, for giving us his precious time. We welcome you, sir. Mr. Meghraj Sharma, CEO, Dr. K.N. Modi Foundation, for joining us. Welcome, sir. Pranam. I would also welcome the organizer of today's event, Mr. Naveen Kaushik, and TutorCorp publisher and distributor. Thank you, sir, and welcome. And thank you very much for arranging these wonderful webinars for us. So before I proceed, I have a few housekeeping items to cover about this webinar. We would love to hear from you all. If you have any questions during the presentation, please type them into the chat box. I'll bring them up during the presentation, and we will also have time for questions at the end. Okay, ladies and gentlemen. कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। आप सब लोगों को इन सब पंक्तियों की मुझे कोई व्याख्या देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सभी जानते हैं कि ये प्रसिद्ध पंक्तियां लिखी गई हैं, गाई गई हैं सुप्रसिद्ध हिंदी कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के द्वारा, जो कि आज हर किसी की जुबान पर है। If in any part of India you hear a young person like you and me reciting shairi or ghazal or any Hindi poem, then my friend, all credit goes to Dr. Kumar Vishwas. He is a craze among everyone and everybody loves him. उनका परिचय देना जैसे सूरज को दिया दिखाने समान है. But I really don't like to miss this opportunity to introduce him officially today. Dr. Kumar Vishwas is a renowned and celebrated Hindi poet and has become an icon among the youth of India. His popularity among the netizens and the youth can be gauged from the fact that millions of people watch videos online and his official page on social media garners millions of views in a month. His online statistics shows that he has 50 lakh followers on FB, 80 lakh followers on Twitter, and over 30 crores views of YouTube videos. A recognized communicator and motivator on various social issues, Dr. Vishwas is a professor of Hindi literature by profession. Apart from being a famous Hindi poet, he is a columnist with several publications on regular basis and has contributed as a writer during several political social issues and campaigns. After completing MA and PhD in Hindi literature, Dr. Vishwas started his career in the year 1994 as a professor in Rajasthan. As a Hindi poet, he has reached great heights and established himself as a poet of Shringar Ras, that is, the romantic genre. His other professional activities include penning lyrics for different title songs of TV programs,
working as a regular columnist, writing articles for different magazines and many other publications, and also on different social issues. Common people, renowned leaders, journalists, business tycoons, and famous personalities have all acknowledged and appreciated him as a poet and writer. Poems in his voice are used by major telecom operators as their caller tunes. He signed contracts with some of the prestigious banners of Bollywood and television production houses for writing lyrics, script, story, and dialogues in their forthcoming ventures. Live performances as a poet have seen transformation from traditional setups to more stylish ones, with music support, fancy lighting, project screen displays, and spotlights that enhance the mood and the aura and the atmosphere of the performance. As a poet, Dr. Vishwas routinely gives performances in which he demonstrates his poetry and love for Hindi, Urdu, and Sanskrit literature. He incorporates his comments on topical issues relating to India. He has participated in poetry recitations and functions abroad, including the US, Dubai, Oman, Singapore, and Japan. He's also very active on media that we all know. Dr. Vishwas has been a guest judge on the Indian Idol television show and a guest on ZTV talent hunt show Sa Re Ga Ma Pa Little Champ. He wrote the song De De Jagah for the 2018 Hindi film Parmanu. The story of Pokhran featured John Abraham and Veer Bhagat Singh. His two more movies as lyrics writer to be released in 2021. Dr. Vishwas was a guest in 1st July 2017 episode of the Kapil Sharma show along with Rahat Indori and Shabina ji. Again, he was a guest on the same show, the Kapil Sharma show, along with Manoj Bajpayee and Pankaj Tripathi. Ladies and gentlemen, he has also presented Talpan, a musical poetry series where he would recite poems of famous poets against a background of music. He has become the first poet to come up with his own show in a musical format. Dr. Vishwas has set a trend for all the anchors after hosting the Kavi Sammelan on Aaj Tak and Mahakavi and Vansh on ABP News. The list of activities and achievements of Kumar Vishwas is endless, but to highlight a few of them, he has written the University Anthem or Kul Geet of the Chaudhry Charan Singh University. He regularly performs in Kavi Sammelans, poet meets held all over India and across the world. The Legislature Assembly of California has awarded Dr. Kumar Vishwas for his efforts of bringing Hindi to a stronger recognition globally. The Immigration Minister of Canada, Mr. Jason Canning, praised Dr. Kumar Vishwas for his performance and promised that Hindi be a part of syllabus in primary education in Canada. The Stanford University, the University of Calgary, the Victoria University, New Zealand, the Melbourne University of Australia, and the La Trobe University of Australia has invited Dr. Kumar Vishwas as a guest lecturer. Awards and recognitions approaching Dr. Vishwas like anything. In 1994, Dr. Kuvar Bechen Kavya Sammelan Avam Puraskar Samiti bestowed on him the Kavya Kumar Award. In 2004, he received the Dr. Suman Alankarna Award by Sahitya Bharati in Unnao. In 2006, he was given the Sahitya Shri Award by Hindi Urdu Award Committee. In 2010, he was given the Dr. Urmilesh Geet Shri Samman by Dr. Urmilesh Chand Chetna Samiti in Badaयूं. When Hindi poetry was fighting for its survival, taking poetry from that level to everyone's heart was really not an easy task.
ये केवल वही व्यक्तित्व कर सकता है जिसने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य को समर्पित कर दिया हो, और डॉक्टर विश्वास इसका जीवंत उदाहरण है। उनकी ख्याति का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुप्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती ने डॉक्टर विश्वास को इस पीढ़ी का सबसे अधिक संभावनाओं वाला कवि कहा था। हिंदी गीतकार गोपाल दास नीरज ने उन्हें निशा नियामक की संज्ञा दी। मशहूर हास्य कवि डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने उन्हें इस पीढ़ी का एकमात्र ISO 2006 प्रमाणित कवि कहा है। He has presented hundreds of webinars, और आज यह हम सभी का सौभाग्य है कि कवियों के कुमार डॉक्टर कुमार विश्वास हमारे बीच उपस्थित हैं। And today he is going to share how to really take the challenge of teaching at the time of Corona pandemic and how to keep yourself motivated in this crisis. Dear friends, the list is endless, but I know that you all are very impatient to listen to him. So now I would request Mrs. Gurmeet Gupta, officiating principal, Dr. K.N. Modi Global School, to welcome our honorable guest of the day. Over to you, ma'am. Thank you, Vanna. सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुनना चाहते हैं हम हर उस बात को तुम्हारी, सुनना चाहते हैं हम हर उस बात को तुम्हारी, काव्य के माध्यम से कह देते हो तुम आवाज हमारी। इन दो पंक्तियों के साथ मैं महाकवि कुमार विश्वास जी का अपनी और अपने संपूर्ण मोदी परिवार की तरफ से मोदी फाउंडेशन में के मंच पे स्वागत करती हूँ। हमारी संस्था पिछले 77 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, और आज का माहौल किससे छुपा है? शिक्षा संस्थानों पर, शिक्षक शिक्षिकाओं पर कैसे कैसे शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं, इससे भी हम सब अवगत हैं। पर हमारा मानना है, जो करते हैं हौसला मंजिल को पाने का, जो करते हैं हौसला मंजिल को पाने का, उनकी ही दुनिया कदरदान होती है। जो करते हैं हौसला मंजिल को पाने का, उनकी ही दुनिया कदरदान होती है। पंख होना ही काफी नहीं, पंख होना ही काफी नहीं, परिंदों के लिए हौसलों से ही हर उड़ान होती है। पंख होना ही काफी नहीं, परिंदों के लिए हौसलों से ही हर उड़ान होती है। और इन्हीं बिंदुओं को आज अपने शब्दों की माला में पिरोकर हमारे अतिथि कुमार विश्वास जी हमारे समक्ष हैं। कुमार जी, अपनी कुछ पंक्तियों के साथ मैं यह मंच आपको समर्पित करती हूँ। यह पंक्तियां आपकी कविताओं के लिए है, अगर गलती हो तो माफी चाहूंगी। तारीफ करूं इस लेखनी की मैं, शब्द मेरे पढ़ते कम हैं। तारीफ करूं इस लेखनी की मैं, शब्द मेरे पढ़ते कम हैं। स्पष्टवादिता और मौलिकता, स्पष्टवादिता और मौलिकता देती अपने संग में यह। व्यवहारिकता को अपनाती है, व्यवहारिकता को अपनाती है, डरती नहीं किसी से यह। आपकी लेखन किसी से डरता नहीं है विश्वास जी। व्यवहारिकता को अपनाती है, डरती नहीं किसी से यह। मान सभी का करती है, मान सभी का करती है, पर असत्य का साथ न देती है। स्पष्टवादिता का श्रृंगार ओढ़ के सदैव चलती है, स्पष्टवादिता का श्रृंगार ओढ़ के सदैव चलती है। वीर रस हो या हो श्रृंगार रस, वीर रस हो या हो श्रृंगार रस, बखूबी गुणगान करती है। धन्यवाद। कुमार जी, मंच अब आपको स्वागत करता है, मंच आपका। नमस्कार आप सबका। डॉक्टर KN मोदी ग्लोबल स्कूल के पूरे परिवार का, अध्यापकों का, शिक्षकों का मुझे सूचना मिली है कि आदरणीय मोदी साहब भी इस समय लाइव हैं हमारे साथ, तो मैं उनका भी सादर अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, और उन तमाम कर्मचारियों का जो इस संवाद को सफल बना रहे हैं हमारे और आपके बीच। वंदना जी ने और मैडम गुप्ता ने मेरे विषय में स्नेहवश, प्रेमवश काफी अतिरेक के साथ बोला, क्योंकि किसी भी कवि, सर्जक, लेखक, कलाकार या चिंतक का जो मूल्यांकन है वो उसके जीवन में कभी नहीं होता। और ये जिस लेखक को, जिस कवि को ये बात समझ में आ जाएगी, वो सार्वजनिक मान्यताओं और सरकारी पुरस्कारों के लोभ से बाहर निकल आएगा। संयोग से मुझे ये बात थोड़ी थोड़ी अभी
समझ में आती है। क्योंकि मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, हमारे कुल के सबसे बड़े बाबा तुलसीदास तक को भी अपने जीवन में भीषण अपमान और बहुत अपशब्द और बहुत सारा तिरस्कार झेलना पड़ा था। यहाँ तक कि जब उन्होंने जन भाषा में अवधी में राम की कथा लिखी तो बनारस की जो एक विशिष्ट लॉबी थी ज्ञानियों की, भाषा भाषियों की, उन्होंने उन्हें भदैनी मोहल्ले से उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया, उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को गंगा में फेंक दिया। इसीलिए बाबा ने मजाक में भदैनी का नाम भयदायिनी रख दिया था, तो ये भयदायिनी घाट है। इसी प्रकार चाहे महाप्राण निराला हो, चाहे जितने भी हमारे बड़े कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार का उपालंब, इस प्रकार की आलोचना, उपेक्षा सही है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और माँ सरस्वती की कृपा है और इस देश के लोगों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ जो मुझे जीवन काल में इतना स्नेह भी देते हैं और इतना समझने का प्रयास भी करते हैं। आज का विषय बहुत आवश्यक है और पिछले कुछ समय से मैं लगातार और पुनः शिक्षक की, गुरु की भूमिका में आ रहा हूँ, क्योंकि जब ये लॉकडाउन नहीं था तब मेरी व्यस्तताओं में टेलीविजन के शो, समाचार चैनलों के टॉक शोज या लाइव कंसर्ट जितनी भी होती थी दुनिया भर में, वो रहती थी। वर्ष भर में कम से कम 150 प्रस्तुतियां देनी होती भारत में और विश्व के दूसरे देशों में मिला के। और ये जो समय होता था जून जुलाई का, इसमें अधिकांश समय अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के दौरे में बीतता था, जहां फ्राइडे, सैटरडे, संडे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार की व्यस्तता रहती थी और बाकी खाली समयों में विश्वविद्यालयों में जाना या वहां की संसदों में आमंत्रित होकर वहां बोलने जाना, ये सब प्रक्रिया रहती थी। बहुत सारे लोगों ने इस लॉकडाउन में निराशा कमाई है, बहुत सारे लोगों ने इसमें आशा कमाई है, उम्मीदें कमाई है। और आश्चर्य की बात है कि दुनिया के जितने सारे देश इसकी चपेट में आए, उनके अंदर जो मानसिक भय बैठा, जो एक आत्मिक अनिश्चितता बैठी, भारत उस दृष्टि से बहुत अधिक बचा रहा। क्या आपने कभी विचार किया कि स्पेन की सड़कों के वो दृश्य या इटली की सड़कों के वो दृश्य, और संयोग से आप सब में से बहुत सारे लोग इन देशों में गए होंगे, मैं भी संयोग से इन सारे देशों में कार्यक्रमों के लिए या निजी व्यस्तताओं की वजह से गया हूं, तो ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाओं वाले देश हैं, जहां सफाई बहुत अच्छी है, जहां मौसम बहुत अच्छा है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं। उसके बाद भी जो भय सड़कों पर पसरा हुआ था, जो मीडिया पर पसरा हुआ था, भारत कमोबेश उस भय के माहौल से बाहर है। आंकड़े वस्तुतः क्या है और किस दर के साथ ये बढ़ रहा है, इस पर मैं चर्चा नहीं करता, क्योंकि सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत करती है वे लगभग मौसम के आंकड़े जैसे होते हैं कि बरसात आज होगी और गरज के साथ छींटे पड़ेंगे और आप पाते हैं कि धूप निकली हुई है। तो लेकिन हाँ, ये तय है कि एक वैश्विक महामारी है जिससे हमको बचना है और हम सब लोग बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारी शिक्षा पद्धति, विशेष रूप से आप जैसे जो शिक्षा संस्थान है, जो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस परिवार की जो शिक्षा के प्रति और समाज के प्रति जो एक समर्पण का भाव रहा है आजादी के बाद से ही, उसे मैं बहुत ध्यान से देखता रहा हूँ। और मोदी नगर चूंकि मेरे गृह कस्बे के बिल्कुल निकट है, हम लोग ट्विन कस्बों जैसे हैं पिलखवा मोदी नगर वाले, बहुधा हमारे वैवाहिक संबंध बहुत होते हैं पिलखवे के और मोदी नगर के लोगों के बीच में। तो मेरे लिए बहुत नया शहर नहीं और मैं उस गतिविधि को देखता रहता हूँ। तो शैक्षिक संस्थाओं के सामने एक चुनौती आई है, विशेष रूप से अध्यापकों के सामने, प्रबंधकों के सामने और विद्यार्थियों के सामने भी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अब अगर ये लॉकडाउन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक रहता है या आने वाले समय में हमको ये लगता है कि सीधे बैठकर शिक्षा देने की बजाय इस अंतरनेत्र से, मैं इस इंटरनेट को अपनी तरह से अंतरनेत्र कहता हूँ और इस www को विश्वव्यापी जाल कहता हूँ। ये एक अंतरनेत्र है जो हमको एक दूसरे से संवाद कराता है। इस अंतरनेत्र के माध्यम से क्या हम अपनी शिक्षा की गुणवत्ता, अपनी विद्या की गुणवत्ता और वो जो हमारा एक दूसरे के साथ संवाद है उसको बराबर जीवंत रख सकते हैं और अधिक कर सकते हैं, या कम है तो कैसे विचार कर सकते हैं। इस पर जो मेरा निजी सोच है और जो मेरा निजी अनुभव है वो आपसे साझा करूंगा। एक तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारा सारा अध्यापक कुल, हमारा गुरुकुल जितना भी है वो आज मुझे सुन रहा है और मैं उसके साथ संवाद कर रहा हूँ। हमारी शिक्षिकाएं हमारे साथ हैं, शिक्षक हमारे साथ हैं, प्रबंध तंत्र के महनीयतम लोग हमारे साथ हैं। एक बड़ी दुर्घटना हमारे साथ हुई है पिछले 100 वर्षों में। जितना अधिक नुकसान इस देश की सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रगति का हुआ है, उतना शायद आर्थिक नहीं हुआ है, उतना शायद तकनीकी नहीं हुआ है, उतना शायद राजनीतिक नहीं हुआ है। इन दो क्षेत्रों में हमने बहुत अधिक नुकसान सहा है।
जैसे सबसे पहला क्षेत्र है संस्कृति, जिसमें धर्म आता है, जिसमें आपकी भाषा आती है, आपकी कलाएं आती है। इसमें बेहद नुकसान, हमारी सहिष्णुता समाप्त हुई है पिछले 100 वर्षों में। हमने एक दूसरे को स्वीकार करना बंद कर दिया है। मैं भी कल का परसों किसी से कह रहा था कि मैं बचपन में, इन दिनों तो जब लॉकडाउन है तो छुट्टियां हैं, तो हम लोग अपने घरों में बंद हैं, अपने अपार्टमेंट में बंद हैं। मुझ जैसे कुछ लोग अपने फार्म हाउस पर हैं, जहाँ गायें हैं, जहाँ तालाब है, जहाँ पूल है और जहाँ खेती है और सब्जियां हैं। और बहुत सारे लोग अपने घरों में हैं। मेरे पिताजी कभी कभार मिलने आ जाते हैं, मैं उन्हें ले आता हूँ वहां पर, हम लोग साथ रहते हैं सारे परिवार के लोग। तो हमने इस बीच में ये बात महसूस की है इस लॉकडाउन के समय में कि मुझे बचपन का समय याद आया कि गर्मियों की छुट्टी में बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव में मेरी ननिहाल है। औरंगाबाद के पास एक छोटा सा गांव है तोमड़ी, वहां मेरी ननिहाल है। तो मेरे पिताजी प्रोफेसर थे बिलखवे के डिग्री कॉलेज में। तो वो गर्मियों की छुट्टी में जून के समय में, टेलीफोन तो होते नहीं थे, एक अंतर्देशीय पत्र मेरे मामा को या मामा के पुत्रों को संबोधित करके भेज देते थे। आत्मीय नौबत राम जी, सोमवार को बड़े वाले भाई का नाम लिख के मनोज की माँ, और साथ में विकास जो इस समय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आचार्य अध्यक्ष हैं, और मेरी बहन जो संयोग से मोदी कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर एंड हेड है मोदी नगर में, वंदना व चिरंजीव विश्वास को लेकर 12 बजे की बस से पिलखवे से निकलेगी और संभवतः 2 बजे तक, 2:30 बजे तक बुलंदशहर और 3 बजे तक औरंगाबाद पहुंच जाएगी। आशा है आप वहां उसे लेने के लिए मिलेंगे। तो ऐसा पत्र लिखा जाता था और ये आशा की जाती थी कि हम उस दिन बस में बैठेंगे और वहां पहुंचेंगे और मामा वहां बुग्गी लेकर, या मामा का लड़का, एक बुग्गी समझते होंगे मेरे ख्याल से कुछ लोग, जिसमें भैंसा जोता रहता है, या बैलगाड़ी लेकर जिसमें एक लकड़ी का 2 पहिए होते थे जिनके ऊपर लोहे के हाले चढ़े रहते थे, और नीचे एक दड़ी बिछा के मिलेंगे पानी की मटकी रखवा के कि बहन आ रही है या बुआ आ रही है। 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ बचपन में, जो मुझे आज भी याद आता है। इस आयु में आकर हम लोग गांव पहुंचे, ननिहाल पहुंचने वाले थे, औरंगाबाद पहुंचे, और हमने देखा कि मामा आए नहीं या मामा का लड़का नहीं आया है। तो मेरी माँ बड़ी चिंतित हो गई, उन्हें लगा शायद चिट्ठी नहीं मिली, शायद पहुंची नहीं। फिर वो बैठी रही, इधर उधर देखती रही। तो उसी गांव के 2-3 लोग और बैलगाड़ी लेके आए। उनमें से एक को उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने मेरे बड़े भाई से कहा कि लल्ला जरा जइयो, ये फला है, उनके घर के हैं ये, और इनसे बोल के आइयो कि मामा हम वहां से आए, ऐसे ऐसे बात। तो वो गए और तुरंत आ गए। सज्जन बोले, अरे लाली, अच्छा तू उनकी बहन है? अच्छा हाँ, छोटी वाली वो जो मास्टर साहब के ब्याही हैं, हाँ चलो, अच्छा बेटा बेटा चल रहे हैं, बस कुछ खरीदारी कर ले। और वो बैलगाड़ी में बिठा के हमको ले गए गाँव। हमारे मामा नहीं आए। अब दृश्य ये है कि हमारा जो ननिहाल का पैतृक घर है, उससे 7-8 घर पहले उन्होंने सामान उतरवा दिया और अपने नौकर से कहा कि सामान वहां तक छोड़िया। और वो धीमे से मेरी माँ से बोले, लाली मेरी तेरे भैया से थोड़ी कहन सुनन चल रही है, थोड़ी अदालत कचहरी चल रही है, तो मैं जा ना पाऊंगा, बालकन को लेके तो उधर को चली गई। वहां पहुंचे तो पता चला, अरे चिट्ठी नहीं मिली थी इसलिए आ गए। चलो जी, जो बात है। कौन लाया? बोले वो रामफल ले आए। अच्छा हाँ, रामफल। मतलब जिस व्यक्ति से खेत का मुकदमा चल रहा है बुलंदशहर की कचहरी में, जिसके लिए वकील कर रखा है कि खेत में ये वाला हिस्सा मेरा है, वो दूसरी जाति का है, हो सकता था दूसरे धर्म का है, उससे बोलचाल नहीं है, उसको देखना नहीं है, उसके खिलाफ लठ भी तने हो सकते हैं, लेकिन जो बहन है वो गांव की साजी बहन है। अगर राजनारायण जी नहीं आए, हमारे मामा या नौबतलाल जी नहीं आए हैं, तो वो जो पड़ोसी आया है वो भी ये मान के कि मेरी बहन है, वो घर छोड़ रहा है। ये सहिष्णुता का संस्कार इस देश की संस्कृति में, इस देश के गांवों में और मिट्टी में था, जब तक कि पंचायत राज की प्रधानी की जातिगत समीकरण और विधायक जी बनने की प्रक्रिया में ग्राम प्रधानों को इकट्ठा करने की टुच्ची राजनीति प्रारंभ नहीं हुई थी, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया में, तब तक ये सहिष्णुता हमारे। सहिष्णुता में आपको ये भी बताता हूं, ये खिलजी जैसे आतंकी और एक अहंकारी राजसत्ता वाले वंश के सम्मुख बनारस में रहकर, जहां ब्राह्मणों का एक तरह से अहमन्य ज्ञान घटाटोप छाया हुआ था, उसके बीच खड़ा होकर एक ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म और वंश के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं है कि वो हिंदू है या मुसलमान, वो विधवा का बेटा है कि सधवा का बेटा है, जो एक अनाथ बच्चा पाला है नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने, वो खड़ा होकर हाथ में लाठी लेकर कबीर कहता है दोनों हिंदू मुसलमानों को, अरे इन दो राह न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पायंतर सोने, ये देखो हिंदू आई। और अभी आ रही है 30 तारीख को ईद, और कहता है मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याह में घर में करें सगाई। ये बोलने का साहस कि घर में शादी कर देते हैं और ये वैश्या के पायंतर सोते हैं ये हिंदू।
ये बोलने का साहस खिलजी के समय में एक कवि ने। कलेजे हाथ रख के बताइए डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन परिवार के लोगों, क्या इस देश में लोकतंत्र होते हुए किसी में साहस है कि कोई ऐसी बात बोल दे? यानी कि हमने सांस्कृतिक रूप से खोया है। 5 तारीख को एक सैकड़ों वर्ष पुराने एक विवाद का बड़ा ही सुखद, बड़ा ही लोकतांत्रिक अंत हो रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 5 तारीख को राम जन्मभूमि के स्थान पर भगवान राम अपने लघु रूप में विराजित हो रहे हैं, जो कि किसी भी भारतीय के लिए बड़ा अच्छा विषय है। और मैं बहुत बधाई देता हूं देश भर के तमाम धर्मों के लोगों को कि उन्होंने अदालत के निर्णय को भी और इस पूरी प्रक्रिया को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े स्नेह और प्रेम के साथ इसे न केवल स्वीकार किया बल्कि इसे अंगीकृत किया और अब इसे आत्मार्पित भी कर रहे हैं, अब इसका निर्माण भी कर रहे हैं। उसकी तिथि पर विवाद हो सकता है, किसी को लग सकता है तिथि शुभ है, किसी को लग सकता है नहीं तिथि ठीक नहीं है। तो देश में एक 90 वर्ष की आयु के अधिक एक शंकराचार्य ने टिप्पणी कर दी। तो मैं देख रहा था ट्विटर और मैं देख रहा था फेसबुक, 17, 18 वर्ष के बच्चों ने, जिन्हें हिंदू शब्द में ये पता नहीं होगी कि है पर छोटी की मात्रा चढ़ती है बड़ी की चढ़ती है, जिन्हें कट्टर में ये पता नहीं है कि एक टे और लगना है या कटर ही लिखना है, वे सब माँ बहन की गालियां उनके लिए बक रहे हैं, क्योंकि वे आपकी वैचारिकी से मेल नहीं खाते, क्योंकि वे शायद आपकी दलगत निष्ठाओं से मेल नहीं खाते, क्योंकि हो सकता है कि वे आपकी सत्ता की निष्ठाओं के साथ मेल ना खाते, हो सकता है उनकी किसी और राजनीतिक दलगत के साथ निष्ठा हो या वहां उनका झुकाव हो। लेकिन वो भारत जो कहता था कि मुंडे मुंडे मकर भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयम, हर कुंड में नया पानी है और हर मुंडी में नई बुद्धि है, जो कहता है कि अलग अलग विचार के लोग भी एक दूसरे को स्वीकार कर सकते हैं, अलग अलग विचार के लोग भी एक दूसरे के साथ सहकार के साथ रह सकते हैं, उस भारत में सहिष्णुता का एक बहुत बड़ा अंश खो दिया है। हम सांस्कृतिक रूप से इतने पिछड़े हैं। मुझे आज भी स्मरण है और मैं परसों ही बड़ा रोमांचित रह गया। मेरे यहाँ जो एक पुताई का काम करता है फार्म हाउस पे, उसका नाम नईम है लड़के का, तो वो मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पर ये रंग करवा देना और बुद्ध के नीचे ये करवा देना और ये कर देना। तो पुताई कर रहा था, मैंने उसका मोबाइल लगाया, अरे नईम ताला यहाँ आओ। तो वो आया और मेरे घर के लोग बैठे थे, उन्हें पहली बार कुछ लोग देखे थे, बोला हाँ जी राम राम साहब बताओ। और ये उसके मन से सहज निकला, उसके प्रति कोई किसी ने आतंक पैदा नहीं किया, किससे कहा नहीं है, क्योंकि उस ग्राम की, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, गाजियाबाद, मोदीनगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये सामान्य प्रक्रिया है कि हमारे अभिवादन में राम राम स्वयं आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है, हिंदू और मुसलमान आ जाता है। ये जो सहिष्णुता और सहकार था, ये पिछले 60-70 वर्षों में हमने किया। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमारा सांस्कृतिक नुकसान हुआ है। छोटी छोटी बातों पर लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। भावना आहत होनी चाहिए जब 2 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। भावना आहत होनी चाहिए जब एक 15-14 साल की लड़की अपने अशक्त पिता को साइकिल पर बैठाकर बिहार ले जाती है। भावना आहत होनी चाहिए जब आपके घरों को सजाने वाले मजदूर इस आपत्ति काल में आपके भरे हुए गोदामों की तरफ आस लगाकर देखते हैं कि इनके घर में 1000 मैगी के पैकेट पड़े हैं, इनके घर में 100 किलो आटा पड़ा हुआ है, पतंजलि के सामान रखे हुए हैं, लेकिन मेरे दुधमुहे शिशु के लिए 2 रोटी इस कोठी से, इस अपार्टमेंट से, इस पेंट हाउस से निकलने के लिए तैयार नहीं है। तब भावनाएं आहत होनी चाहिए। भावना आहत होनी चाहिए इस समाचार पर कि कोरोना वार्ड में जो लड़की अपना इलाज करा रही है, उससे एक सुशिक्षित, प्रशिक्षित, टैक्स के पैसे से पड़े हुए डॉक्टर रेप कर लेता है, और अगले दिन खबर आती है कोरोना वार्ड में डॉक्टर ने युवती से किया रेप। इस पर भावना आहत होनी चाहिए। भावना आहत होनी चाहिए इस पर कि सरेआम इंटरनेट पर, ट्विटर पर हमारे आपके घरों के लड़के इस पुरुषवादी सोच के से बजबजाते हुए कीड़े की तरह अपने से असहमत लड़कियों की रेप की धमकी देते हैं, सरेआम थ्रेट की धमकी देते हैं। भावना आहत होनी चाहिए कि हर एक पार्टी के नेता इस प्रकार के घटिया समर्थकों को पालते हैं, उन्हें सत्ता का खून पिलाते हैं, उन्हें पिस्सू बनाते हैं और फिर इस समाज में छोड़ देते हैं। भावना आहत होनी चाहिए कि गंगोत्री से निकली हुई मलय शीतलाम हमारी मां गंगा बनारस तक आते आते सारे सेठों के कारखानों का कचरा सहते सहते इतनी काली, इतनी अशक्त, इतनी दीन हो जाती हैं कि विदेश से आया हुआ व्यक्ति फोटो खींचता और ये सोचता है कि इस प्रदूषण से भरी हुई नदी में इन 135 करोड़ लोगों को ऐसी क्या आस्था है। भावना आहत होनी चाहिए टेम्स को देखकर, हडसन को देखकर, येरा नदी को देखकर कि उन्होंने अपनी नदियां कैसी सुंदर रख रखी हैं, कैसे न्यूयॉर्क से चल के और नाइग्रा फॉल तक पहुंचती है
हडसन नदी और उसके किनारे पर बच्चे खेलते हैं, परिवार रहते हैं, कॉलोनी बसती है, रॉचेस्टर बसता है, बफलो सिटी बसता है, और नदी एकदम पवित्र शानदार अपने जल के साथ रहती है कि आचमन करके पी सकते। भावना हाथ होनी चाहिए कि कैसे ऐसे वीडियो सरफेसिंग होती है जहां कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदमी अपनी पत्नी को मारता है और घरेलू कुत्ताओं से बचा रहा होता है। भावना हाथ होनी चाहिए कि उद्योग, संस्कार और महत्वपूर्ण लोगों की प्रतिभा से और क्षमता से गौरवान्वित गरवी गुजरात के ऐसे वीडियो आते हैं जहां एक बच्चा अपनी मां के खर्चे से बचने के लिए उसे रेलिंग से धक्का दे देता है और आत्महत्या का नाम दे देता है। तो हमारा सांस्कृतिक उन्नयन हुआ है या हमारा सांस्कृतिक पराभव हुआ है, इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं जो शिक्षा का विषय है। जब इस देश पर आक्रमण हुआ, आक्रमण कभी भी तलवारों के साथ अकेला नहीं होता। जब किसी संस्कृति पर, किसी देश पर, किसी भूभाग पर आक्रमण होता है, किसी दूसरे विचार का, किसी दूसरी वैचारिकी का, दूसरे प्रकार के लोगों का, तो केवल तलवार से आक्रमण नहीं होता। वो अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने खान पान से, अपने वेशभूषा से आक्रमण करते हैं। और सहकारी संस्कृतियां वो हैं, सत्यम शिवम सुंदरम से उत्प्रेरित और अभिसिंचित संस्कृतियां वो हैं जो दूसरी संस्कृतियों का अच्छा लेने। लेकिन हमने ऐसा कभी भी नहीं किया। आज की तिथि में भी हम वेस्ट का वेस्ट ले रहे हैं, बेस्ट नहीं ले रहे हैं। हम स्पेल बी लेकर भारत में नहीं आए। अमेरिका में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका बच्चा स्पेल बी में नहीं जाता। स्पेल बी यानी कि वर्तनी शुद्धि का एक कार्यक्रम। लेकिन वहां के जो सबसे खराब कार्यक्रम है बिग बॉस, जो वह नंगई के लिए फेमस है, उसे हम भारत लेकर आए, आदरपूर्वक लेकर आए। उस पर हमने बनाया और देखा। हमें से किसी ने नहीं कहा कि इन्वेंशंस ऑफ अमेरिका जैसा बड़ा शानदार प्रोग्राम भारत लेकर आए और भारतीय युवा वैज्ञानिकों की एक पौध आ जाए। माई बिजनेस आइडिया जैसा एक प्रोग्राम लेके आए जो यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में चलता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपना बिजनेस आइडिया देते हैं और उसको स्टार्टअप में लोग निवेश करते हैं और देश नए स्टार्टअप बनाता है। हम ये नहीं करते। हम बिग बॉस लेकर आते हैं, हम और प्रकार की चीजें लेकर आते हैं, लिव इन रिलेशनशिप और ये वो सबसे, मतलब आप देखिए वो 5 कंसेप्ट है। आप नेटफ्लिक्स देखिए, आप अमेज़न देखिए, 40 मिनट का एक एपिसोड है और हर बात तय है। 10 मिनट बाद एक बर्बर हत्या होगी, 15 मिनट बाद एक इंटीमेट सेक्स का सीन आएगा, उसके बाद 20 मिनट बाद एक भयानक धोखा बिट्रेयल आएगा, उसके बाद एक 35 मिनट होने वाले एक जबरदस्त यू टर्न आएगा और 40वें मिनट पर किसी एक महत्वपूर्ण पात्र को समाप्त कर दिया जाएगा। ये पटकथाएं हैं, ये काम चल रहा है और इससे लड़ने का काम कौन करेगा? प्रतिबंध काम नहीं करते। देखिए, जब भारत में अरब की ओर से एक विचार ने हमला किया और वो विचार धार्मिक नहीं था, वो सत्ता पाने के लिए था। मैं ये हिंदू होकर नहीं कह रहा, मैं भारतीय होकर, विश्व नागरिक होकर कह रहा हूं कि भारत पर इस्लाम का आक्रमण किसी धर्म का आक्रमण नहीं था। भारत पर इस्लामिक चरमपंथियों का जो आक्रमण 10वीं शताब्दी से शुरू हुआ, वो भूमि विस्तार का आक्रमण, और भारत ने अपने पूरे इतिहास में आज तक कभी किसी भूमि पर कब्जा नहीं किया। अयोध्या से चलने वाले एक वनवासी भगवान श्री राम अपने एक सामान्य से साधारण भाई और जगत जननी मां भारतेश्वरी सीता को लेकर लंका तक गए, इतना भीषण युद्ध किया, लेकिन वहां अधिकार नहीं किया। अयोध्या की सरकार में उसको सम्मिलित नहीं किया। कर सकते थे भारत की सरकार में, ना कोई अपना गवर्नर बिठा के आए। उन्होंने वहां कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बिठाया, गयासुद्दीन बलबन नहीं बिठाया। उन्होंने वही के एक राजवंश के एक योग्य नागरिक को, जिसकी आस्था थी पूरे लंका की, जो मामा मातुल के कह जाने के बाद और मंदोदरी के भी स्वीकार कर लेने के बाद वहां का राजा बनाए, उन महाराज विभीषण को वहां का राज्य देकर लौटाए। भारत की किसी परंपरा में, चाहे कथा कहानी की हो, चाहे माइथोलॉजी की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, 1 इंच जमीन विश्व के किसी देश की दूसरी संस्कृति की भारत ने अपहरण नहीं की। यह भारतीयता का धर्म दर्शन भी है और भारत का सांस्कृतिक दर्शन भी। लेकिन भारत पर आक्रमण हुआ, इस्लाम के नाम पर हुआ, लेकिन उसका मूल उद्देश्य तो कब्जा करना था, जमीनों पर लूटना था इस देश की संस्कृति को। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें भारत में थोपी। उन्होंने भाषा भी लागू करने की कोशिश की, थोड़ी थोड़ी हुई भी, हम सब की जबान में आ गई है। मैंने जबान बोला, आ गई है, चीजें आ गई हैं। उर्दू तो खैर भारत में ही पैदा हुई, अरबी फारसी के कुछ शब्द हमारे आए हैं, यहाँ तक कि पुर्तगाली, जिन्होंने एक छोटे से भूभाग पर कब्जा किया था गोवा में, उनकी भाषा भी हमारे पास है। मैंने जो कपड़ा पहन रखा है, जैसे मैं कमीज कहता हूँ, ये पुर्तगाली शब्द है। मैं जिस जगह पर बैठा हुआ जिसे कमरा कहता हूँ, ये पुर्तगाली शब्द है। फ्रांसीसी उपनिवेशवादी आए, उन्होंने उपनिवेश भारत में छोटा सा बनाया, तो उनके शब्द भी हमारे पास आए। फ्रांस में एक पग चलने की नाप को फुरलॉन्ग कहते हैं। हमारे पूरे इलाके में फल्लांग बोला जाता है। क्या फल्लांग पे घर है भैया? अरे 4 फल्लांग पे तो दुकान है भाई, चले जाओ, फुरलॉन्ग बोला जाता है। तो ये तो अच्छी बात है।
भाषा आए, किसी का खाना पीना भारत में आए, किसी का अच्छा है, किसी की वेशभूषा आए, किसी का सदाचार है, लेकिन ये संस्कृति को तय करना है कि आपको क्या सीखना। हम वेस्ट का वेस्ट ले रहे हैं, बेस्ट ले रहे हैं, और वेस्ट हमारा बेस्ट ले रहा है। वो आयुर्वेद ले रहा है, वो योग ले रहा है, वो ध्यान ले रहा है, वो पारिवारिक संस्कार ले रहा है, वैल्यूज ले रहा है कि एक घर एक साथ कैसे रहा जा सकता है। तो 70 वर्षों में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पिछले 100-150 सालों में, वो ये हुआ कि हमारी शिक्षा पद्धति जो गुरु और शिष्य के संबंध पर थी, वो शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध पर। हमने एक फौज तैयार की जो सीखना चाहती है, जानना नहीं चाहती, क्योंकि यूनियन जैक लेकर आए हुए अंग्रेज गोरे को सबसे पहली जिस चुनौती का सामना करना पड़ा वो ये थी कि प्रश्न और जिज्ञासा और स्वाभिमान से भरे हुए भारतीय सिरों को अगर उठना है तो यूनियन जैक को सलाम करने के लिए उठना है, प्रश्न करने के लिए नहीं उठना है। और उसके लिए क्या करें? उसके लिए जानकारी नामक बहुत सारा बोझ इस पर लाद दें और उसे ज्ञान कहने लगे। जानकारी ज्ञान नहीं होती, ये हाथी है, ये जानकारी है, लेकिन ये मैमल है और ये ऐसे प्रसव करता है, ये इतने दिन इसमें रहता है, ये ज्ञान है। ये पहली बार किसी विजिगिषु ने, किसी खोजी ने हाथी के संपर्क में रहकर 1, 2, 3, 4 साल में देखा होगा कि कितने समय का इसका मादा का प्रसव काल होता है, शिशु कैसे पृथ्वी पे आता है। उसने देखा होगा अगर पहली बार में अंडा आया होता तो वो कह देता अंडा है। अगर न्यूटन किसी बाग में बैठा हुआ है और सेब नीचे गिर रहा है तो हजारों वर्षों से गिर रहा था, सेब तो लाखों वर्षों से गिर रहा था, और सेब के बागों में करोड़ों न्यूटन बैठे होंगे। किसी ने ये क्यों नहीं सोची कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? हर चीज जो गिरती है वो नीचे आती है, ये क्यों आती है? ये प्रश्न, ये जिज्ञासा, ये जानने की इच्छा, ये एक से अनेक हो जाने की इच्छा, जो वेद कहता है एको हम बहस्याम, मैं ऐसा कुछ कहूं जो बहुतों को पता चले, बहुत सारे लोग जाने, ये इच्छा तो भारतीयता में थी। तो हमने, अंग्रेजों ने कोशिश की कि भारतीयता के इस मौलिक संस्कार को कैसे समाप्त किया जाए। तो उन्हें सेवक चाहिए थे, उन्हें ऐसा नेटिव चाहिए था जो प्रश्न ना करे, जो बस बोले ना, जो कहा जाए वो करो। तो बाबुओं की, क्लर्कों की, आदेश मानने वालों की एक फौज तैयार करने का पाठ्यक्रम और इसी प्रकार की शिक्षा नीति को तैयार किया गया। दुर्भाग्य का विषय है कि आज 72-73 वर्ष होने के बाद जो तथाकथित राष्ट्र संस्कृति की दुहाई देने वाली पार्टियां हैं वे भी, और जो इनसे विपरीत और इनसे अलग रहने वाली पार्टियां हैं वे भी, अलग अलग प्रकार के प्रयोग भारतीय राजनीति में हुए। सबने सब चीजों के बारे में सोचा, इस बारे में नहीं सोचा। 135 करोड़ के देश में सवाल नहीं है कि कपड़े का मंत्रालय है, कोयले का मंत्रालय है, रसायन और खनिज तक का मंत्रालय है, लेकिन शिक्षा का मंत्रालय नहीं है। मानव संसाधन विकास नामक एक मंत्रालय है जिसमें 6 तरह के काम है, उसमें शिक्षा भी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसमें तमाम चीजें हैं। और शिक्षा के प्रति खर्च करने वाली जीडीपी कितनी है, टोटल खर्चे का कितना प्रतिशत शिक्षा पर हम खर्च करते हैं। तो हमने कोशिश की, अंग्रेजों ने कोशिश की और हम आज तक उसे मान रहे हैं, जिसकी चुनौती आपके सम्मुख भी आती होगी। जब मैं पढ़ाता था इसी मेरठ विश्वविद्यालय के कॉलेज में, लाजपत राय कॉलेज में, और आंदोलन के दौरान मैंने 2011 में इस्तीफा दे दिया। लगभग 17 वर्ष मैंने पढ़ाया, एसोसिएट प्रोफेसर में हो गया था। जब मैंने इस्तीफा दिया तो मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि नौकरी चली रही थी, चलती रहती, अच्छा है, 2-3 साल बाद पेंशनेबल हो जाती। तो मैंने उनसे कहा नौकरी तो चल रही थी, पर मुझे ये लग रहा था कि जो मैं निवेश कर रहा हूं उसका मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा। जितनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा, जितनी क्षमता मैं लगा रहा हूं इन बच्चों में, उतना आउटपुट मेरे पास कौन आ रहा है? बीए पढ़ने के लिए लड़का, एमए पढ़ने के लिए लड़का, मेरे पास वो आ रहा है जो 11th करने के बाद एनडीए में नहीं जा सका, जो साइंस और तथाकथित रूप से कॉमर्स पढ़ के सीए के और सीएस की तैयारी के लिए नहीं जा सका, IIT नहीं बन सका, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सका, जिसके पिताजी के पास 30-35 हजार रुपए भी नहीं थे कि इंजीनियरिंग के नाम पर ये जो छोटे छोटे कुकुरमुत्ते उगाए हैं हिंदुस्तान भर में, इनकी सी दुकानों में उसको जमा कर दें। वो बच्चा बच्ची लास्ट में मेरे पास बीए पढ़ने के लिए आ गया। मुझे आप बहुत ही सामान्य चीज दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ऊर्जा भी लगा दूंगा, लेकिन जब मैं उसे अच्छे से बीए करा के भेज रहा हूँ, जब मैं उसे इतिहास, हिंदी सबसे अच्छे से, तो उसके पास काम करने को नहीं। फिर आप उससे कहते हैं बीटीसी कर ले, बीएड कर ले, एमए कर ले, चल एमफिल कर ले, चल टीचर हो जाना स्कूल में। और अध्यापक हो जाना मतलब, अध्यापक हो जाना, वन हु कैन डू डज, वन हु कैन नॉट टीच। हमारे यहाँ मजाक है ये। मतलब जिस अध्यापक का, मैं बड़ा आश्चर्य में हूं, और मुझे जो हमारे आज शिक्षक बंधु सुन रहे हैं और मुझे क्षमा करेंगे कि मैं कटु बोल रहा हूं, मैं राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाता था
असिस्टेंट प्रोफेसर था। हमारे यहाँ एक लड़का नियुक्त होकर आया जोधपुर से, जैसलमेर से, रहबारी जाति है, ऊंट पालकों की जाति होती है, और बड़ा मेधावी लड़का था और संस्कृत वो था, प्रोफेसर था, एमफिल की थी उसने, नेट की थी, और 1 साल बाद उसका अपॉइंटमेंट तहसीलदार के लिए हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो नौकरी छोड़ के जाने लगा। तो मैंने उससे कहा यार तू, वो आया भैया हम जा रहे हैं, तो मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो तुम, यहाँ तुम इतना अच्छा संस्कृत बोलते हो, इतना अच्छा पढ़ते हो, तुम्हारी गति है भाषा में, आज तुम असिस्टेंट प्रोफेसर हो, 5, 7, 8 साल बाद एसोसिएट प्रोफेसर हो जाओगे, फिर 18 साल बाद प्रोफेसर हो जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, लिखना पढ़ना, कहाँ ये क्लास 2 का काम करने के लिए जा रहे हो नायब तहसीलदारों में। तो उसने मुझसे कहा बात तो आप सही कह रहे हो भाई साहब, पर ये भी तो हो सकता है कि एक तो मेरे को आरक्षण भी है, तो मैं 12 साल बाद 15 साल बाद मैं आईएएस हो जाऊं, प्रमोट होते हुए तहसीलदार से पीसीएस बनूं, पीसीएस से आईएएस बन जाऊं, और इस कॉलेज में जहां प्रिंसिपल हो जाओगे प्रमोशन पाके, मैं एज ए कलेक्टर विजिट करने आऊं, तो जैसे हमारा प्रिंसिपल कलेक्टर का दरवाजा खोलता है आपको भी दरवाजा खोलना पड़ेगा। मैं हथ पर रह गया, क्योंकि एक तहसीलदार का, एक दरोगा का, एक थानाध्यक्ष का ट्रांसफर होता है किसी दूसरे शहर में, तो उसे पता होता है कि वो रुकेगा कहां, वो जाएगा कहां। ये सर्किट हाउस है, ये सरकार के A-B-C कैटेगरी के मकान है, एडीएम साहब का ट्रांसफर हुआ, एसडीएम साहब का ट्रांसफर हुआ, कहीं भी वजह से पता है ये मिलेगा, ये दफ्तर है, ये अर्दली है, ये गाड़ी है, ये ड्राइवर है। एक प्रोफेसर साहब का ट्रांसफर हो जाए या वो कॉलेज बदल लें, तो जाके ढूंढेंगे कहीं किसी गुप्ता जी के पास, किसी शर्मा जी मिश्रा जी के पास, 5 कमरों का मकान होगा, ऊपर 2 रूम सेट होगा, उसमें कहेंगे जी दे दीजिए, और वो कहेंगे मास्टर साहब रहते हैं हमारे यहाँ ऊपर, मास्टर साहब रहते हैं। क्योंकि हमने शिक्षक को मास्टर बना दिया, हमने शिक्षा देने वाले का आदर करना बंद कर दिया, हमने ये मानना ही बंद कर दिया। आज मैं देखता हूं, मुझे सूचनाएं मिलती है, एक विश्वविद्यालय से आया कार्यक्रम, और उसके जो ओनर थे मुझसे बोले 600 एकड़ में साहब यूनिवर्सिटी हमारी, 600 एकड़ में यूनिवर्सिटी। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर जब मैं वहां पहुंचा तब कहने लगे साहब आपने देखी हमारी यूनिवर्सिटी 600 एकड़ में। मैंने कहा जी अच्छी बात है। फिर मुझसे बोले कुछ खिलाते पिलाते समय अपने ऑफिस में जिक्र करना साहब आप इस बात का स्टेज से 600 एकड़ में। मैंने फिर अवॉइड करा। जब मैं कार्यक्रम में परफॉर्म कर रहा था फिर नीचे से फिर किसी बात को चिल्ला कर बोले 600 एकड़ में, इंजीनियरिंग कॉलेज था यूनिवर्सिटी। मैंने कहा वो आपके चेयरमैन साहब कह रहे हैं 600 एकड़ में है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो केमिस्ट्री पढ़ाते समय 10 एकड़ के खेत में प्रोफेसर कैसे पढ़ाते होंगे, आगे लड़के भाग रहे होंगे पीछे पीछे परख नहीं लेके 10 एकड़ में फिजिक्स चल रही है। एकड़ से नहीं बनता संस्थान, अकड़ से नहीं बनता संस्थान, समर्पण से बनता है, शिक्षकों के आदर से बनता है, उनके ज्ञान से बनता है, उनके नवोन्मेष से बनता है, उनकी प्रतिभा के परिष्कार से बनता है, उसके स्वाभिमान से बनता है कि हम शिक्षक बनाते हैं। हम पुल नहीं बनाते जो 100 साल बाद खराब हो जाएगा, हम सड़क नहीं बनाते जो 10 साल बाद टूट जाएगी, हम बिल्डिंग नहीं बनाते जो 1000 साल बाद गिर जाएगी, हम चंद्रगुप्त बनाते हैं जो लाखों वर्ष याद रहेगा, हम राम बनाते हैं जो लंका जाकर अनाचार को हरा के आएगा, हम संदीपन के आश्रम में कृष्ण बनाते हैं जो चाणूर मर्दन करेगा, जो कंस का नाश करेगा और जो कालिया के फन पर नृत्य कर देगा। ये जो स्वाभिमान है शिक्षक हो जाने का, इसका तिरोहन किया गया, इसको तार तार किया गया है योजना पूर्वक सरकारों द्वारा, व्यवस्थाओं द्वारा। तो आप सब जितने भी आज शिक्षक सुन रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि अपने विषय में आज से स्वाभिमान का बोध लाइए, और मैं आशा करता हूं कि वो आप में होगा ही, क्योंकि आप इतने अच्छे संस्थान में काम करते हैं, इतने योग्य प्रबंध तंत्र के साथ आप काम करते हैं। लेकिन ये स्वाभिमान लाइए कि आप क्या बनाते हैं। मेरे पिताजी जब कभी घर आते हैं और मेरा कोई मित्र आ जाए सपरिवार और पैर छूने लगे हमारी भाभियां कोई भी दोस्तों की, तो पिताजी पूछते हैं अच्छा बेटा तुम क्या करते हो? अंकल मैं ये काम करता हूँ। कोई लड़की बैठ जाओ, बिटिया क्या करती हो? अंकल मैं तो हाउस वाइफ। तो मेरे पिताजी कहते हैं नहीं बेटा हाउस वाइफ नहीं है, तुम होम मेकर हो, तुम घर बनाते। मकान तो दुनिया बनाती, गृहिणी घर बनाती। मेरी माँ से बड़ा निर्माता कौन होगा? मेरी माँ ने हम 4 भाई और 1 बहन को संस्कार दिया है, भाषा दी है, सोच दी है, बताया है कि इस प्रकार जीना है। आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी निर्मिति में उनका बहुत जबरदस्त अंश है, उनकी बहुत अधिक सीख है। तो आप सब लोग क्या बना रहे हैं? आप सब लोग भारत बना रहे हैं। देखिए एक खराब इंजीनियर क्या कर देगा? एक खराब इंजीनियर आप पैदा करिए, वो जीवन में कुछ पुल खराब बना देगा। एक खराब डॉक्टर पैदा हो जाए, भगवान ना करे, तो वो कुछ लोगों को असमय मार देगा। लेकिन एक खराब अध्यापक अगर आप दे देंगे तो वो हजारों हजार जीवन को अंधकार पूर्ण कर देगा। और एक अच्छा अध्यापक आप दे देंगे तो वो खराब से खराब प्रोडक्ट के अंदर भी प्रकाश भर देगा। तो ये जो शिक्षा और विद्या का अंतर है,
ये गुरु और शिक्षक हो जाने का अंतर है। इसको अगर आप भी समझ लें और आपके विद्यार्थी भी समझ लें तो मुझे लगता है कि चाहे ये परिसर कितना भी छोटा हो आकार में और आप लोग संख्या में कितने भी बड़े हों, आप भारत के लिए कुछ महान कर सकते हैं, विश्व के लिए, मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा और विद्या में यही अंतर है। शिक्षा केवल इतना ज्ञान देती है, इतना बताती है कि क्या है, और ज्ञान बताता है, विद्या बताती है कि कैसे है। एजुकेशन और लर्निंग में जो अंतर है, मैं अक्सर इस बात को कहता रहता हूं कि हमारा मौसम विज्ञान बताता है आपको आज बारिश होगी, आज गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, आज ऐसा होगा। और मैं अपने गांव जाता था और कभी विद्यालय ना गए, मेरे बाबा या मेरे ताऊ जी मुझे जो खेत ले जाते थे, बहुत छोटा था, इन दिनों की बात होती थी, तो अक्सर कहते थे ऊपर देख के, आज तो राम जी पछाए से बरसेगा, आज तो राम जी पूरब से बरसेगा। राम जी मतलब वर्षा। तो मैं उनसे पूछता था कि ताऊ जी क्यों बरसेगा? भैया ये पंडाक्ता ना रही है रे में, रे मतलब रेत मिश्रित मिट्टी में, पंडाक्ता एक छोटी सी चिड़िया होती थी। ये उन्होंने किसी न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ सिस्मोलॉजी या लंदन स्कूल ऑफ ओशनोलॉजी या मौसम विज्ञान के किसी बड़े संस्थान में पीजी करके या पीएचडी करके या डीलिट करके नहीं सीखा। ये उन्होंने बुजुर्गों की परंपरा से सीखा। उनको उनके पिता ने बताया, उनको उनके पिता ने बताया, उन्होंने 4 लोगों को सुना और अनुभवों की एक बड़ी पूंजी इकट्ठी हुई जिसने ज्ञान का सूत्र बनाया। घाघ भड्डरी के जो दोहे हैं, जो सूक्तियां हैं, वो मौसम पर हैं, कृषि पर हैं और वो बहुत सारे हमारे किसानों के काम में आती है। तो हमने षड्यंत्र पूर्वक लर्निंग को साइड छोड़ा है। यही कारण है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स पैदा करते हैं पर दुनिया में सबसे कम साइंटिस्ट पैदा करते हैं। हमारे इंजीनियर्स पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिविजन्स चलाते हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है। दुनिया की पहली 3 कंपनियों के जो 3 सीईओ हैं वो इंडियंस हैं। सत्यम, सत्या नडाल, शिवम सुंदरम पिचाई। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शंकर का डमरू बज रहा है दुनिया की पहली 3 कंपनियों पर। ये लड़के यहीं के पढ़े हुए हैं, आईटी खड़गपुर के पढ़े हुए, आईटी दिल्ली के पढ़े हुए, कोई कहीं और का पढ़ा हुआ है। लेकिन भारत ने फेसबुक तैयार नहीं की, भारत ने गूगल तैयार नहीं की, भारत ने यूट्यूब तैयार नहीं की, भारत ने नवीन खोज तैयार नहीं की, क्योंकि प्रश्न करने की, जिज्ञासा करने की जो हमारी अर्वाचीन शैली थी, पद्धति थी, उसको हमने समाप्त कर दिया। हमारे बहुत सारे ग्रंथ तो इसी पर है, तो प्रश्नोत्तर शैली। याज्ञवल्क्य संहिता पढ़िए, नवारे मैत्रेयी, प्रश्नोत्तर संवाद है। 84 वैष्णवन की वार्ता पढ़िए, प्रश्नोत्तर संवाद है। पूछा जा रहा है और जवाब दिया जा रहा है। एक बात पूछी गई है फिर उसका जवाब दिया गया है। और हमने जिज्ञासा का आदर करना समाप्त कर दिया। आप लोग इस संस्थान को चलाते हैं। मैं अपनी बेटी की पेरेंट्स मीट में जाया करता था, बाद में तो मेरी श्रीमती जी ने मना कर दिया कि आप मत जाइए, आपके जाने से वहां प्रॉब्लम ही होती है, मैं ही चली जाऊंगी। तो मैं जाता था, मैं देखता था। एक बार मैं बैठा था तो एक माता पिता बात कर रहे थे और हम लोग साइड में बैठे थे, कब हमारा नंबर आएगा। तो मैडम कह रही थी कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, पूरे टाइम ना कुछ भी नहीं बोलता है, बिल्कुल चुप रहता है, शांत रहता है, सब ध्यान से सुनता है, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल चुपचाप आता है, चुपचाप जाता है। तो जब वो बात करने लगी तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि इस बच्चे की माँ तो तुम्हारी दोस्त है, इनको बोलो कि अपने बच्चे को किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, किसी से बात करें। इस बच्चे, उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, लड़ाई कराओगे? मैंने कहा ये कैसा बच्चा है जो प्रश्न नहीं करता है, जो उपद्रव नहीं करता है, जिसमें जानने की इच्छा नहीं है। ये किस दिन बाथ टब में लेटेगा और पानी बाहर आएगा तो इसके अंदर इच्छा ही नहीं होगी कि मेरे लेटने से बाहर पानी कैसे आया, ये आर्किमिडीज कैसे बनेगा। ये बाग में बैठा होगा, फल नीचे गिरेगा तो इसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो ये कैसे बनेगा। ये सुबह भूखा होगा, इसकी माँ ने भोजन नहीं कराया होगा और इसके अंदर बल होगा, शक्ति होगी, और आसमान में लटकते हुए सूर्य की ओर जाकर ये फल समझकर नहीं खाएगा तो ये लंका विजय का हेतु बनाने वाला बजरंगबली हनुमान कैसे बनेगा। युग के जामवंत है आप लोग इस स्कूल में बैठे हुए सारे अध्यापक। आपके चारों तरफ ये जो बजरंग दल है एक तरीके का, वैसा वाला नहीं जो राजनीति वाला है, जिज्ञासा का जो ये वज्रांग दल है, इसको प्रेरित करिए, इसको जागृत करिए, इसको बताइए कि तुम्हारा जन्म इसमें। हमने हनुमान जी की जो जिज्ञासा थी बचपन में उसको अपमानित नहीं किया, हमने उन्हें दंड नहीं दिया, हमने उन्हें और कृपा से अभिषिक्त किया, उन्हें रुद्रावतार बनाया और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे को कोई मार नहीं पाएगा। यानी कि हमने जिज्ञासा को आदर देना प्रारंभ किया। हमने जिज्ञासा का आदर बन गया। सबसे अच्छी क्लास कौन सी स्कूल में? जहां से शोर नहीं आता हो, बिल्कुल एकदम। मैडम की क्लास तो बहुत पीसफुल चलती है, बच्चा शोर नहीं मचाता, बच्चा बात नहीं करता। मिट्टी में मत खेलो बेटा,
डस्ट में हाथ हो जाएंगे। सारे विज्ञापन इन मल्टीनेशनल कंपनियों के ऐसे सैनिटाइजर से भरे हुए हैं। चलिए अब तो कोरोना आ गया, ऐसी चीजों से मिट्टी के कण रह जाएंगे, यहां मिट्टी के कण रह जाएंगे। आज दुनिया बता रही है कि मिट्टी इम्यूनिटी बढ़ा रही है। ज्यादा मृत्यु दर यूरोप के देशों में क्यों हुई? साफ हवा है, साफ पानी है, सब कुछ साफ है, क्यों हुई? क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी। लंदन में आप जाइए, लंदन के स्टोर्स में एक येलो येलो छोटी छोटी चीज रखी रहती है। मेरी बेटी वहां रहती है, तो मैंने उससे पूछा ये क्या है, तो उसने कहा मुझे कि ये टर्मरिक शॉट्स है, ये एक 10 पाउंड का आता है, यानी कि आपके शरीर में टर्मरिक की मात्रा कम है और वो इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो लीजिए, खोलिए और उसको पी जाइए। या तो सुबह से शाम तक टर्मरिक शॉट्स खाते हैं भाई। इस सब्जी में भी आधा चम्मच टर्मरिक और इसमें भी आधा चम्मच टर्मरिक, और हल्की सी बदन में हरारत हुई तो अम्मा घोल के दे दे टर्मरिक, ले बेटा रात को गर्म दूध में पी जाए टर्मरिक। तो किसके शॉट्स? इम्यूनिटी हमने बढ़ाई, अपने सारे गिलोय से बढ़ाई, अश्वगंधा से बढ़ाई, ब्राह्मी से बढ़ाई, दालचीनी के पत्तों से बढ़ाई, गरम मसालों से बढ़ाई। हमारी इम्यूनिटी है, लेकिन नहीं, अब नई शैली आई है, डस्ट लग गई है, बेटा हाथ उधर रखो, ऐसा करो। धीमे धीमे आप वेस्ट का वेस्ट ले रहे हैं, बेस्ट नहीं ले रहे। तो जितने भी लोग हैं, ये जो दूर शिक्षा है, विद्यार्थियों के मन में ये बात हो सकती है कि हम अपने गुरुओं के साथ नहीं है, टीचर्स के साथ नहीं, हम कैसे बताएंगे। मुझे लगता है कि इस संवाद में और इस तरह से बातचीत करके, अगर ये टू वे भी हो, आप भी बोले मैं भी बोलूं, या आपके विद्यार्थी बोले और आप भी बोले, मुझे नहीं लगता कि ज्ञान के प्रवाह में कहीं कोई समस्या आने वाली है। अक्सर आज से हजारों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले, जब हमारे धर्म ग्रंथों ने लिखा कि ऐसे संकट के समय में अचानक आकाशवाणी हुई, तो आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले लोग हंसते होंगे कि आकाशवाणी कैसे हो जाएगी, जब आदमी दिख नहीं रहा तो आवाज कैसे आएगी? अरे कोई चीज सामने होगी तभी तो आवाज आएगी। ये सामान्य प्रश्न था, लेकिन पश्चिम ने खोज कर दी। आज आकाशवाणी होती है, आवाजें आती है। आज आपके सामने कोई भी मोबाइल पर जो गाना आता है, आईट्यून पे आप चलाते हैं, गाने पे चलाते हैं, आदमी नहीं दिख रहा, लता मंगेशकर नहीं दिखती, मोहम्मद रफी नहीं दिखते, मुकेश साहब नहीं दिखते, दिवंगत हो गए। आवाजें आती हैं, आकाशवाणी होती है, लाइव प्रसारण होते हैं, आकाशवाणी है। आज से 200 साल पहले लोगों को यह भरोसा होने को संभव नहीं था कि ये भारतीय किस प्रकार की ऐसा बात कहते हैं कि कर्ण ने आकाश में हाथ जोड़ा तो भगवान सामने दिखने लगे। ऐसे कैसे दिखने लगे? है नहीं तो दिखने कैसे लगे? टीवी आया तो दिखने लगे। अब तो दीवार पर उतरते हैं, अब तो कपड़े पर उतरते हैं, अब तो हथेली पर उतर रहे हैं, पाम टैब आ रहा है भाई। लैपटॉप की जरूरत ही नहीं है आपके पास, यहाँ एक छोटा सा चिप आप लगवा लीजिए, उसके बाद पाम पर आ जाएगा, यहीं से मैथमेटिक्स कर लीजिए, यहीं से मेल खोल लीजिए, रात को बंद कर लीजिए। कोई लैपटॉप लेके चलने की जरूरत ही नहीं है, कोई मोबाइल हाथ में लेके चलने की जरूरत नहीं है, उसी को खोलिए, सिम कर लीजिए, पाम टैब आ गया, नई डिवाइस आ गई है। और डिसोल्यूशन आ रहा है कि कैसे इस पर काम कर रही है पूरी विश्व की बड़े वैज्ञानिक लैब्स की, कैसे आदमी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो पंच तत्व हैं, हम जिन्हें पंच तत्व कहते हैं वो इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, उर्दू वाले इन्हें अज्जा कहते हैं, है ना। मतलब जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परीशा होना, चकबस का शेर है। तो इन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। धीमे धीमे डिसॉल्व होकर एक साथ इकट्ठे हो जाएं, मैं आप रहे ना रहे, 100-150 साल बाद ये आदम जात इस बात की खोज कर लेगा कि एक आदमी एक जगह डिसॉल्व हुआ करेगा और वही आदमी अगले मिनट, अगले सेकंड कैलिफोर्निया में खड़ा हो जाएगा, प्रोड्यूस हो। इसी प्रकृति के उसी फार्मूले से मैं बना हूं, मेरे अंदर जितना जितना इतना है वो एक्यूरेट हो सकता है। कुछ शुरू में कमियां आए, छोटा आदमी डिसॉल्व हुआ बड़ा बन गया, बड़ा आदमी डिसॉल्व हुआ छोटा बन गया, इस रंग का डिसॉल्व हुआ उस रंग का बन गया, इस पर काम कर लेगा और एक दिन फाइन ट्यून करके ये भी कर देगा, बशर्ते कि आप अपने सांस्कृतिक उद्घोषों में, अपने पूर्वजों के आप्त वाक्य में जो पीछे हुआ है उस सब में भरोसा करना शुरू और ये मानना शुरू करें। हमारे यहाँ ये बड़ी दिक्कत है कि कोई कुछ कह दे। अब हमारे शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के डॉक्टर दिनेश शर्मा, पढ़े लिखे आदमी है, भले आदमी है बेचारे, उन्होंने एक दिन एक सेमिनार में कह दिया कि परखनली ट्यूब तो हिंदुस्तान में पहले से बनते रहे। हल्ला हो गया भाई उनके खिलाफ, कैसी कोंगापंथी की बात कर रहे हैं भाई, द्रोण हुए हैं हमारे यहाँ डोल में, है अलग अलग प्रकार से लोग अलग अलग। भाई ये भी कहा जाता है कि दुर्योधन जब बहुत दिनों तक नहीं हुआ था तो उसको जो है वो घड़े में रखा गया था, फेटस को, और उसके बाद वहां से वो निकला। हमने प्रयोग पहले से किए। मैं सदा कहता हूं कि आज से 2200-2300 साल पहले सरगुजा एक छत्तीसगढ़ में जगह है, वहां के पर्वतों पर, रामगिरी के पर्वतों पर बैठकर संस्कृत के महाकवि और भारत के सांस्कृतिक महाकवि कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा, एक किताब लिखी, आप सब जानते होंगे, मेघदूत, है ना। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वादिकारत प्रमत्ता
शापे नास्तंग गमित महिमा वर्ष भोग्येण वर्तु। कुबेर के यहाँ नेपाल में एक यक्ष काम करता था। यक्ष माने एक ट्रेंड आदमी जो गाना बजाना ये सब जानता है। उसकी ड्यूटी थी कि सुबह जब कुबेर लक्ष्मी की पूजा करे तो वो जाकर सरोवर से फूल लेकर आए। अब उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी होने में वो पत्नी के साथ रात को देर तक जाग गया होगा। नई शादी में प्रेम भी होता है, स्नेह भी होता है, संवाद भी होता है, एक दूसरे को जानने की इच्छा भी रहती है। देर तक जाग गया, सुबह नींद नहीं खुली, अलार्म तो थे नहीं, पत्नी भी बेसुध सोई रही, तो देर से पहुंचा वो फूल लेके। इससे यक्ष की पूजा भंग हो गई, कुबेर की पूजा भंग हो गई। तो कुबेर ने उस यक्ष को शाप देते हुए कहा कि जिसके स्नेह के कारण तूने अपने इस राजकीय दायित्व में बाधा पहुंचाई है और अपने काम को तूने भंग किया है, मैं तुझे 2 वर्ष के लिए उस प्रेम से विलग करता हूं, अलग करता हूं। और उसे नेपाल से सरगुजा भेज दिया गया, छत्तीसगढ़। सीधी अर्थों में तो बोलो बात यह है साहब कि फाइनेंस मिनिस्टर का जो एक असिस्टेंट था वो सुबह को फाइल लेकर आता था, नई शादी हुई थी, फाइल पहुंची नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर नाराज हो गए, उन्होंने दिल्ली से उसका ट्रांसफर रायपुर कर दिया। यही तो हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर ही तो है वो, या कुबेर, तो बेचारे का ट्रांसफर कर दिया। अब वो न्यूली मैरिड आदमी, उस समय न कम्युनिकेशन न कुछ, सरगुजा के पर्वतों पर बैठा हुआ है। उसकी कविता लिखी मेघदूत, हमारे महाकवि कालिदास जी ने। तो लोग हंसे और अब भी बहुत दिन तक हंसते रहे कि जाओ मेघ पे खत कैसे चला गया। उन्होंने मेघ के ऊपर पत्र लिख लिख कर भेजे उसे, और उन्हीं पत्रों का संग्रह मेघदूतम है। लोगों ने आश्चर्य करा, आपके विज्ञान ने आश्चर्य करा, गुरु परंपरा ने आश्चर्य किया। लेकिन अगर पश्चिम में घटना की होती तो अब तक के सारे वैज्ञानिक ये सोच रहे होते कि यार कवि ने कहा कुछ तो होगा, कैसे होगा ये, और नहीं है तो कैसे होगा, करके देखते हैं। आज जब आई क्लाउड के जरिए आपके आईफोन में लेटर लिखा हुआ छोड़िए, जब फोटो उतरते हैं, जब वीडियो उतरता है, तो कालिदास जीत जाता है और शिक्षा हार जाती है। जैसे कालिदास ने लिखकर भेजे थे और चित्र बना के भेजे थे कालिदास ने। यक्ष ने तो बादल पर चित्र बनाकर भेजा था कि मैं सरगुजा के ऊपर पर्वत पर बैठता हूं और अपनी प्रेमिका से कहता है कि जब वो कोयल यहां बोलती है तो मुझे तेरी आवाज सुनाई देती है, जब यहाँ ये मोरनी नाचती है तो मुझे तेरा नर्तन सुनाई देता है, ऊपर पहाड़ी से मैं नदियों के वर्तुल देखता हूं, यो टेढ़ी यो गोल घूमती हुई, तो तेरी कमर की गोलाइयां दिखाई देती हैं मुझे, और ये जो मोर के पंख हैं नीचे जब लटकते हैं तो मुझे तेरी जुल्फें दिखाई देती हैं, लेकिन तू इकट्ठी कहीं नहीं दिखाई देती। ऐसा सब भी लिखता है। श्यामा स्वंगम सकित हरिणी प्रेक्षणा निम्न नाभि श्रोणी भारा दलस गमनास्तो गनाम्रस्तनाभ्याम हंतई कत्र न क्वचिदपि चंडी सादृश्य मस्ती। चंडी है कोपन स्वभाव वाली है, बुरा मान जाने वाली, जल्दी रूठ जाने वाली मेरी पत्नी, मेरी प्रिया, मैं तुझे एक साथ कहीं नहीं देख सकता। ये कालिदास ने 2200-2300 साल पहले कहा। अगर उस वक्त आप लोगों ने, शिक्षा ने, ज्ञान ने उस पर भरोसा किया होता तो आज ये इंटरनेट की, आई क्लाउड की जो संभावनाएं हैं और ये खोज है, ये भारत में हुई होती, दूसरे देशों में ना हुई होती। तो हमने लर्निंग और शिक्षा को षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों के कहने पर अलग अलग किया। मैं पिछले कई वर्षों से इस आंदोलन को चला रहा हूं कि कृपा पूर्वक इंजीनियर कम बनाइए, वैज्ञानिक ज्यादा बनाइए, कृपा पूर्वक राजभाषा अधिकारी कम बनाइए, कवि ज्यादा बनाइए, कृपा पूर्वक ड्राफ्ट्समैन कम बनाइए, लेखक ज्यादा बनाइए, कृपा पूर्वक हिस्ट्री के प्रोफेसर्स कम बनाइए, इतिहासकार ज्यादा बनाइए, कृपा पूर्वक राजनेता कम बनाइए, युग पुरुष ज्यादा बनाइए, कृपा पूर्वक संत कम बनाइए, उपलब्ध लोग, फकीर लोग, अलख लगाने वाले, कबीर जैसे, रामानंद जैसे, तुलसी जैसे लोग ज्यादा बनाइए। तो आप सब पर जिम्मेदारी है, मुझ पर भी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलकर ये प्रयास करें कि ये जो कोरोना काल में दूरस्थ शिक्षा का कंसेप्ट है, इसे रोचक कैसे बनाए, इसे मौलिक कैसे बनाए। जैसे मैं कुछ सुझाव आपको देता हूं। आपकी 45 मिनट की क्लास है, आपकी 50 मिनट की क्लास है, जितने भी लोग यहां पर हैं वो प्रतिदिन तय कर लें कि 5 से 10 मिनट की छोटी कहानी सुनाकर आप अपनी बात शुरू करें। आप केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप किसी बड़े केमिस्ट्री के एक बड़े आदमी की जिंदगी का एक किस्सा सुनाकर बात शुरू करें। आप बताएंगे कि मैडम क्यूरी जब आयरलैंड गई थी, जब ये हुआ था, आज मैं आपको ये बात बताती हूँ। यहां से फिर आप आइएगा इस पर, वैलेंसीज पर, फिर आप आइएगा पीरियोडिक टेबल पर,
आप इतिहास पढ़ाते हैं, आप एक छोटी सी कहानी सुनाकर शुरू करेंगे कि इतिहास बदलने की कब कब कोशिश की गई, द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा हुआ। पहले इसमें कहानी आपको याद आनी चाहिए कि जब नॉर्मैंडी में जब ब्रिटेन के सैनिक उतरे जर्मनी को हराने के लिए, तो इतने सैनिक जब ऐसे मारे गए, बहुत कम लोगों को पता होगी कि ब्रिटेन का जो सेनाध्यक्ष होता था वो हर शहीद के परिवार को पत्र लिखता था और उस पर खुद के साइन करता था कि आपके बच्चे ने सर्वोच्च बलिदान दिया है इस आजादी को बचाने के लिए, मैं आपका आभारी हूँ। और एक समय ऐसा आया जब ब्रिटेन जीतने वाला था हिटलर से, मित्र राष्ट्र जीतने ही वाले थे, उसके 10-15 दिन पहले की बात है, नॉर्मंडी पे हमला हो चुका था और एडवांसेस कर रही थी ब्रिटेन की सेनाएं कि एक ही महिला के नाम 3 पत्र बाय द वे सुपरवाइजर को दिखे। जब उसने चेक किया तो पता चला कि एक ही विधवा महिला के 3 बेटे अलग अलग मोर्चों पर मारे गए। वो ये पत्र लेकर ऑफिसर के पास गया, ऑफिसर सेनाध्यक्ष के पास गया, सेनाध्यक्ष चर्चिल के पास गया। चर्चिल ने पूछा कि 78 साल के चर्चिल ने पूछा कि बहुत दुखद, कितने बच्चे हैं इस महिला के? तो जो जानकारी जुटा के लाया था उसने बताया था कि सर 4 बेटे हैं इसके, चौथा कहाँ है? तो उसने कहा साहब वो पैरा ट्रूपर है, नॉर्मंडी में लैंड किया गया है। चर्चिल ने अपने सेनाध्यक्ष को कहा कि अपने बेस्ट जो तुम्हारे स्नाइपर्स हैं उनका एक दल बनाओ, 8 स्नाइपर्स का, 16 स्नाइपर, जितना चाहो, मुझे हर हाल में इस विधवा माँ का चौथा बेटा सुरक्षित चाहिए, उसे युद्ध क्षेत्र से निकाल के लाओ, जर्मनी के आक्रमण के बीच में से निकाल के लाओ, कुछ भी लगा दो, ये मनुष्यता, ये मानवता का भाव है। और कमाल देखिए कि जब उसे बचाने के लिए, जब वो रायन उसका नाम था, प्राइवेट रायन, जब उसे बचाने के लिए 8 बहुत ही स्पेशलिस्ट ब्रिटिश कमांडर्स का जत्था पहुंचा, चलते युद्ध के बीच में, जैसे जैसे उसे ढूंढा गया, जब इतने लोग मर रहे हो लाखों तो कहाँ ढूंढा जाए, और जब उसे बताया गया कि उसके 3 भाई मर गए तो रोने लगा। और जब उसे कहा गया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं और सेनाध्यक्ष चाहते हैं कि आप वापस अपनी माँ के पास घर जाएं, तो वो लड़ मरा। उसने कहा प्रधानमंत्री के चाहने से क्या हो, मैं क्या कह के जाऊंगा, मेरे 4 भाई शहीद हो गए, मैं भाग के लौटाया अपनी अम्मा के पास, मैं लड़ूंगा। और उसे बचाने के लिए कई सैनिक शहीद हुए, बाद में युद्ध समाप्त हुआ और वो अपने घर गया। तो ये जो किस्सा है मैंने आपको सुनाया अभी 3 मिनट, इतिहास की क्लास पढ़ाते समय इससे शुरू करिए, फिर देखिए आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा। हिंदी की क्लास पढ़ाते समय एक छोटी सी कहानी से शुरू करिए या छोटी सी कहानी से खत्म करिए, बता दीजिए कि इतने मिनट पढ़ाऊंगी और इतने मिनट में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ये बात पता कर दीजिए। तो मैं समझता हूं कि दूरस्थ शिक्षा है, डिस्टेंस एजुकेशन जो इस समय है, जो इंटरनेट के माध्यम से चल रही है, इसमें बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि मैंने कई क्लासेस ऐसी पढ़ाई हैं। मुझे याद है साहिबाबाद इस कॉलेज में, एलआर में, या गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में, या शाहपुरा जहां मैं पहले पढ़ाता था, या सबसे पहली नौकरी पीलीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में, मुझे कई क्लासेस ऐसी यादें आ रही हैं जो अगर ऑडियो विजुअली रिकॉर्ड होती तो वो मेरे लिए भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज। जैसे अगर मैंने रश्मिरथी क्लास में पढ़ाई और 3 महीने में रश्मिरथी पढ़ाई या 2 महीने में रश्मिरथी पढ़ाई एमए में, तो मुझे लगता है कि वो रश्मिरथी के 1-1 घंटे के जो पीरियड थे वो रिकॉर्ड होते, तो और वो अगर अवेलेबल होते ऑनलाइन तो उन्हें लाखों लोग देख पाते, और मैं भी उनसे और समृद्ध होता कि मैंने कहाँ गलत बोला है, कहाँ कम बोला है, कहाँ ठीक नहीं बोला है, मैं और खुद को परिष्कृत कर पाता। तो ये तो बहुत अच्छा अवसर है कि ऐसे समय पर आप जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इन वेबिनार के जरिए, इन जूम कॉल्स के जरिए और प्रकार के जिस भी प्रकार से आप इस कॉल को करते हो, आप एक दस्तावेजीकरण कर रहे हैं अपने ज्ञान का। इसे अध्यापक के नाते, गुरु के नाते, शिक्षक के नाते आप स्वयं भी सुनकर स्वयं से संवाद करेंगे कि यहाँ कमी रह गई, ये बोलना था, और विद्यार्थियों के लिए भी एक छोटे छोटे कैप्सूल तैयार होंगे। संयोग से अब मैं इस विषय में काम कर रहा हूं और मैं बहुत जल्दी सोचता हूं कि कम से कम ह्यूमैनिटिक्स का बहुत सारा कोर्स, पीजी का, यूजी का या 12th का, मैं स्वयं पढ़ाकर ही बच्चों के लिए फ्री टू एयर उपलब्ध कराऊं, ताकि भारत भर में जितने भी ये 16-17 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, इनके काम में आ सके, इतिहास काम में आ सके, पॉलिटिकल साइंस काम में आ सके, सोशियोलॉजी काम में आ सके, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर काम में आ सके, जो मुझे थोड़ा बहुत पता है और थोड़ा बहुत और शोध करके जो मैं जान दूंगा, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो इस ग्लोबल स्कूल के जितने भी साथी जो आज जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने मनोयोग पूर्वक मुझे सुना, और मेरा भी बड़ा मन था कि मैं आपसे लंबा संवाद करूं। हमें 1 घंटे का समय हो गया, हमको पता नहीं चला। हो सकता है कुछ बातें आपको इसमें अनर्गल लगी हो, अनुचित लगी हो, और आपके विचार से मेल न खाती हो। तो जब भी आप ऐसा किसी के विषय में भी सोचें, आप लंदन की पार्लियामेंट के बाहर लिखा हुआ वोल्टेयर का स्टेटमेंट याद करें, जो वहां उन्होंने सोने से लिखवा रखा है, गोल्ड के अक्षरों से लिखवा रखा है, और उसका अनुवाद हिंदी में ये है कि मैं आपसे असहमत हो सकता हूँ,
पर आपको अपनी बात कहने का अवसर मिले, इसके लिए मैं अपनी प्राण दे सकता हूं। आज से शुरू करिए अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर, अपने व्हाट्सएप पर जो लोग भी असहमति को आदर ना देते, जो लोग भी स्त्री हित, दलित हित, वंचितों का हित, रेस का हित, इसके विपरीत बात करते हैं, उन्हें ब्लॉक करिए। उन्हें पहले उन्हें समझाइए कि आप ये गलत कर रहे हैं, चाहे वो आपके अपने हो चाहे पराए हो, उनको ब्लॉक करिए, उनको खत्म करना शुरू करिए। जैसा कि शुरू में वंदना बता रही थी और गुप्ता मैडम बता रही थी कि 81 लाख के आसपास ट्विटर पर मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं और लगभग 51-52 लाख फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, लगभग बहुत सारे करोड़ों लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने ऑफिस के लोगों से भी कह रखा है, मैं स्वयं भी ध्यान रखता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति भाषा की गरिमा मर्यादा बाहर करता है, अपशब्द बोलता है, अश्लील लिखता है, हिंसक लिखता है, तो वो कोई भी हो, मैं उसे अपने वर्चुअल परिवार से बाहर का रास्ता दिखाकर उसका मार्ग अवरुद्ध कर देता हूं। और मेरी मेल बॉक्स में लगभग डेली 100 ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें लोग फिर गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, साहब वो आपके ऑफिस ने, आपने हमें ब्लॉक कर दिया है फेसबुक पे, ट्विटर पे, प्लीज ओपन कर। लेकिन हम उन्हें नहीं खोलते, हम उन्हें जब तक नहीं खोलते जब तक कि वो इस बात की आश्वस्ति ना दें कि आगे से वो इस प्रकार की भाषा नहीं रखेंगे। एक कॉमेडियन लड़की ने कॉमेडी की है, मैंने तो सुनी भी नहीं क्या की, हो सकता है उसने गलत की हो सकता है उसने निश्चित रूप से हमारे किसी प्रतीक के बारे में अपशब्द कहा हो, लेकिन ये अधिकार इन लड़कों को किसने दिया कि उसे सड़क पर रेप कर देने की धमकी देंगे, उसे कहेंगे कि तेरा निर्भया जैसा हाल बना देंगे, उसके बाद हम नारे लगाएंगे सड़क पर खड़े होकर, निर्भया के न्याय दिलाने पे मोमबत्ती जलाएंगे, हम उसका फोटो लगाएंगे, प्रोफाइल ब्लैक करेंगे, इसके बाद यानी कि हम प्रतीक्षा करेंगे। असहमति के खिलाफ इतना आपका विश्वमन, जो आपकी राजनीति, आपकी सोच, आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपके क्षेत्र को ठीक ना लगे, वो आदमी रहना नहीं चाहिए। इसलिए हे शिक्षकों, अपने विद्यार्थियों को तैयार करिए कि प्रकृति का सबसे अच्छा गुण है यूनिटी, एकता, एक रूपता नहीं। सोच के देखिए कि हमारी माएं, हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारी भाभी, हमारी पुत्रियां अगर पूरे वर्ष भर एक ही कपड़ा पहने, एक ही रंग के सलवार सूट पहने, एक ही रंग की साड़ी पहने, तो उनके सौंदर्य में, उनकी आभा में, उनकी प्रस्तुति में, उनके दिखने में, उनके मन में कितना क्षोभ पैदा होगा, कितना खराब लगेगा। जब आपका जीवन बहुरंगी है, जब आपकी सोच बहुरंगी है, जब ये प्रकृति बहुरंगी है, जब 8.5 अरब लोगों को ईश्वर ने एक जैसा नहीं बनाया, सबका डीएनए अलग बनाया, ये उंगली के कोने पर जो गोल निशान है इसकी बनावट तक अलग बनाई है, फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, ये जो आंख की पुतली है इससे विकिरित होने वाली जो किरणों की का जाल है वो एक नहीं है पूरा 8.5 अरब लोगों का। आप चाहते हो पूरी दुनिया एक जैसी हो जाए? मैं हरा देखता हूं तो हरा दिखे सबको, और मैं भगवा देखता हूं तो सबको भगवा दिखे। ये कुछ लोग हैं हर तरफ, हर पार्टी में, हर देश में, हर इलाके में, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जो हिटलर से चल के आती है परंपरा, जो मुसोलिनी से चल के आती है, जो औरंगजेब से चल के आती है, और जो आज भी है, इन सरकारों में भी है और पिछली सरकारों में थी और आगे भी होंगे, और हमारी संस्कृतियों में भी है, जो ये चाहते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम खाते हैं, जैसा हम उड़ते, ऐसा तुम भी खाओ, नहीं तो तुम बाहर हो। ये यूनिटी नहीं है, ये यूनिफॉर्मिटी है। और प्रकृति का सबसे मौलिक, वांछित और सत्यम शिवम सुंदरम से अभिषिक्त गुण उसका वैविध्य है। भारत माता की चुनरी में हजारों रंगों के फूल खिलते हैं, तब जाकर वो इतनी शोभन, इतनी सुंदर लगती है कि विश्व उनकी ओर आश्चर्य, श्रद्धा और गर्व से निहारता है, और हर भारतवासी उनके मुख को देखकर अपलक निहारता रहता है। एक जैसा हो जाए तो फिर कितना बुरा लगे। माता सीता के शरीर पर वलकर देखकर हम कितने रोए हैं जब वो दोनों चले हैं तापस वे, क्या कहते हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। राम को उदासी नहीं है, अवध को उदासी है, प्रकृति को उदासी है कि त्रैलोक्य के जिस स्वामी को विभिन्न रंगों के कपड़े पहनने थे, जिस जगदम्बा को, जिस भारतेश्वरी को विभिन्न आभूषणों को पहनना था, वो क्या एक जैसा कपड़ा पहनकर एक जैसा घूम रही है। तो ये जब मैं जो शर्ट पहने उसमें कितने प्रकार के रंग, कितने प्रकार की इसमें, तभी तो ये सुदर्शन और सुंदर लग रहा है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, 2 क्वेश्चन लेंगे वो लोग करवा दीजिए। तो मैं आज अपनी रो में कुछ बहुत ज्यादा लंबे समय तक बोल गया, सर आपको जितना सुन ले उतना कम है, लेकिन आप लोग इतना अच्छा सुन रहे थे शायद इसलिए बोल गया। तो आपकी मुझे पता नहीं कि मैं इन प्रश्नों के योग्य हूं या नहीं जो आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन अगर मेरे पास कोई उत्तर होगा तो मैं आपको जरूर दूंगा। जो 1-2 साथी कुछ पूछना चाहते हो वो संवाद कर लें, ताकि फिर हम इसे विराम दें और अगली बार फिर जल्दी ही दोबारा मिले। ये वादा मैंने नवीन जी और तमाम मित्रों से किया भी है कि मैं अब लगातार इस संस्थान से और समूह से जुड़ा रहूं।
सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, इतना प्रेरणादायी संवाद आपने किया हमारे साथ। और जैसे कि आपने प्रकाश डाला कि भारत में श्रेष्ठता और संस्कृति का हाथ जो है वो वाकई विचारणीय है, चिंतनीय है, और आज भारतीय संस्कृति के पतन का एक कारण शिक्षा में वेदों का अनुसरण ना होना भी है। और इतनी बेबाकी से आपने शिक्षकों की पीड़ा को उजागर किया, उसके लिए वाकई मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आग्रह करूंगी हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष श्रीमती पूनम शर्मा मैम से कि वो अपना प्रश्न रखें सर के सामने। थैंक यू मैम। जी पूनम जी। थैंक यू मैम। यस, शून्य सार्थकता पर मंथन कर, शून्य सार्थकता पर मंथन कर, विश्व में पाठ पढ़ाते हो, विश्व में पाठ पढ़ाते हो, युवा में वायु सा वेग बहाकर, युवाओं में वायु सा वेग बहाकर भारत का परचम लहराते हो, भारत का परचम लहराते हो। हालांकि मैं विश्वास जी के सम्मान में ये शब्द, ये पंक्तियां गागर में सागर भरने जैसी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी भावनाओं को इन पंक्तियों के माध्यम से प्रेषित करना चाहूंगी। जैसा कि विश्वास जी सर आपने बताया, हालांकि शिक्षिका को अपने शब्दों में बयान कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम लोगों को आजकल जो टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट का समय चल रहा है, लोगों को हिंदी बोलने में हीन भावना महसूस होती है। उस हीनता को हम कैसे कम कर सकते हैं? अगर वही चीज अगर इंग्लिश बोलते हैं, अगर इंग्लिश में अगर नहीं आती है तो लोगों को शर्म महसूस होती है, वहीं अगर हिंदी नहीं आती है तो बड़े सम्मान से कहते हैं कि नहीं हमें हिंदी नहीं आती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि हम उसे कैसे मोटिवेट करें कि लोगों में हिंदी के प्रति सम्मान पैदा हो। देखिए पूनम जी ने जो प्रश्न पूछा है कि हिंदी बोलने में लोगों को शर्म आती है, पहली बात तो यह है कि भाषाएं आपको जितनी ज्यादा आए, जितनी अधिक आए, वो आपके लिए जीवन जीने के लिए और दुनिया जानने के लिए उतना अच्छा है। किसी भी भाषा से घृणा करना बड़ी मूर्खता है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि सनातन धर्म की जय तब हो सकती है जब इस्लाम के विरुद्ध आप हो, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनका नेता बड़ा तब हो सकता है जब पिछली दूसरी पार्टियों का नेता है उनको आप खारिज करें। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिंदी तब आपकी आगे बढ़ सकती है, पहले अंग्रेजी को खत्म करें। ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। अंग्रेजी भी आप जान लीजिए, फ्रेंच भी आप जान लीजिए, संस्कृत आप जान लीजिए, और जितनी भाषा आप जानिए तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी तो बहुत ही सरल, बहुत ही सामान्य और अवैज्ञानिक सी भाषा है जो बोलचाल में ही समझ में आ जाती है। वो भाषा में परिष्कृत हो गई है, लेकिन वो बोली है जो आप आराम से बोल सकते हैं। हिंदी तो फिर भी थोड़ा सा वैज्ञानिक है, और संस्कृत तो परम वैज्ञानिक भाषा है, इसीलिए कंप्यूटर भी उसमें कोई गलती नहीं करता है। जो एक बार सूक्त समझा दिया, जो एक बार व्याकरण समझा दिया, उसी व्याकरण के अनुसार भाषा चलती है। हिंदी का जादू तो आप इसी बात से जान सकती हैं कि इस देश में आपको महानायक बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, आपको हिंदी तो बोलनी पड़ती है। और हिंदी सर मेरा नहीं सर, सॉरी सर, आप किसी भी पार्टी में हो, हमारी कांग्रेस पार्टी की महनीय नेता और उसकी पूर्व अध्यक्ष जो है वो दूसरे देश की निवासी थी और अब तो भारत की बहू हैं और भारत की एक राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व संभालती हैं। बड़ी शालीन महिला है सोनिया जी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भारत आने में अगर राजनीतिक वर्चस्व कायम करना था तो उन्होंने हिंदी बोलना सीखा और हिंदी बोलती थी, चाहे कागज से पढ़ के बोली और अब शायद स्वयं में भी बोलती हूँ। ममता दीदी कलकत्ते में बहुत ही बड़ी लेता है, लेकिन जब बोलना होता है तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो हिंदी बोलनी होती है। ये एक छद्म है, ये एक फार्स है कि हिंदी नहीं आती है या अंग्रेजी अच्छी लगती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, मैं भी गाने लिखता हूं और मैं भी फिल्मों की स्टोरी डायलॉग्स लिखता हूं, और मैं अक्सर देखता हूं कि जिन लोगों ने हिंदी में गीत लिखा, हिंदी में गीत बजा, हिंदी फिल्म में आया, हिंदी बोलने वाले हीरो ने गाया, उनको जब उसी गाने पर फिल्म फेयर मिलता है, आपने देखिएगा कभी, और उनसे 2 शब्द बोलने के लिए अगर जो संचालक कहता है तो वो कैसे कहते हैं, आई वुड लाइक टू थैंक माई डायरेक्टर, माई मदर, माई किटी, माई डॉग। अरे भाई अंग्रेजी में गाना लिखते चले, एक अंग्रेजी में गाना लिख के बजा के देख, फिर देखते तेरे को कितना लोकप्रियता मिलती है, कितने लोग सुनते हैं, कितना पैसा मिलता है। तो ये सब मुझे हिंदी नहीं, मुझे अंग्रेजी ज्यादा आती है, हिंदी नहीं आती, ये बेसिकली ये इंफीरियरिटी है।
ये हीनता बोध है। सर कुछ लोगों के अंदर हीनता है, उसको उभरने के लिए वो इस तरह की भाषा बोलते हैं, वरना इस देश में और इस देश के बाहर लगभग 200 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। और मैं तो गर्व से कहता हूं कि आज मेरे पास अगर इंटरनेट की इतनी बड़ी फॉलोअरशिप है, तो आप अगर मुझे देखें, मुझे अनुसरण करने वाले लोग देखें, मेरी कोई भी पोस्ट बहुधा ही 100-200 में कभी किसी बात पर अंग्रेजी लिखनी पड़ जाए, कोई ऐसा विषय हो जो अंग्रेजी में ही कहना है, कोई अंतरराष्ट्रीय महत्व का विषय हो, भाई इमरान खान साहब को संबोधित करना है, ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के ऊपर कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया देनी है, तो अंग्रेजी है, नहीं तो सब कुछ हिंदी में है, भाषा में है, बोलियों में है, संस्कृत में है, और वो करोड़ों करोड़ लोगों द्वारा सुनी जाती है, देखी जाती है। तो सबसे पहले तो आप खुद में स्वाभिमान अनुभव करिए पूनम जी कि आप हिंदी की शिक्षिका है। सर वो भाषा ने अपनी सेवा करने का अवसर लोगों में हीनता की आप बोल पा रही है, कह पा रही है। जिस दिन आप अपने ऊपर स्वाभिमान करना प्रारंभ करती, जैसे मैं आपको इस स्मरण सुनाता हूँ, मैं बहुत लोकप्रिय नहीं था, अब भी कोई खास लोकप्रिय नहीं हूँ, लोकप्रियता तो अलग ही बात होती है, थोड़ा सा लोग पहचानते हैं। तो मैं एक बार कोटा से दिल्ली आ रहा था कवि सम्मेलन करके, तो सुबह ही सुबह कोटा रेलवे स्टेशन पर मैं रिजर्वेशन का फॉर्म भर रहा था, पहले फॉर्म भरते थे ना वो, तो वहां कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के पढ़ के जा रहे होंगे या कहीं से आ रहे होंगे 5-6, उनमें से एक लड़के ने इंप्रेशन डालने के लिए हिंदी का मजाक बनाते हुए मुझसे मेरी कलम मांगी, पेन मांगा, मुझे जानता नहीं था, मैं लिख रहा था। उसने मेरे कंधे पे हाथ मार के कहा, बंधु जरा लेखनी देंगे मित्र। 3-4 लड़कियां भी थी, उसको लगा बड़ा फनी बात है कि मैंने हिंदी में मजाक, मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। मैं लिखते हुए कहने लगा, जैसा कि आपको दृष्टिगोचर के अद्यतः मैं अपनी कर्णिका से स्वतः लेखन में प्रवृत्त हूँ, इससे निवृत्त होने के उपरांत मैं अपनी लेखनी आपको देने के विषय में गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श कर पाऊंगा। उसने मुझे हाथ जोड़ के कहा, प्रभु 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 कौन है आप, और सब लोग हंसने लगे। तो आप जो है हिंदी को लेकर उसकी मजाक बनाना, सीरियल्स में हिंदी की मजाक बनाना, फिल्मों में हिंदी की मजाक बनाना, वो सब लोग हैं जो हिंदी की रोटी खाते, जो हिंदी पर जिंदा है, जो सड़क पर अगर ठोकर लग जाए गिरते में ओ माँ बोलते हैं, माँ नहीं बोलते ओ जीउस, ओ जीज, नया आ गया, जीसस को छोटा करके जी। अरे आप बोलिए भाई, दूसरी भाषा को खराब बात थोड़ी है यार। और मैं बार बार फिर कहता हूं, अपनी भाषा से अच्छा कुछ नहीं होता, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। दुनिया के सारे देश जिन्होंने प्रगति की है, चाहे चाइना हो चाहे जापान हो, उन्होंने अपनी भाषा में प्रगति की। भारत के नेताओं को, और मुझे अच्छा है कि मैं मोदीनगर के मित्रों से बात कर रहा हूँ। मोदीनगर के एक कवि थे हरिदत्त गौतम, मुझे पता नहीं आजकल वो कहाँ है, वो एक स्कूल में पढ़ाते थे। उनकी कविता की पंक्ति थी, मुझे याद रह गई 35 वर्ष बाद, नेता विदेश के स्वाभिमानवश जबकि मातृभाषा बोले, तब राष्ट्र पुरुष राष्ट्रीय दिवस पर भी न राष्ट्रभाषा बोले। क्या आवश्यकता है? रूस का प्रधानमंत्री बगल में खड़ा होता है, वो तो रशियन में बोलता रहता है भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दुभाषिया बताता रहता है, और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री या हमारे यहाँ का विदेश मंत्री जो होता है वो अंग्रेजी में बोलते हैं। इट वॉज ए वंडरफुल बायलैटरल टॉक्स, सामने से पढ़ के, अरे क्या बोल रहा है बायलैटरल टॉक्स, बोलो बहुत अच्छी द्विपक्षीय वार्ता हुई हमारे आदरणीय मेहमान के साथ, और उसको वो रशियन में बता देगा, समझेगा। तो शक्तिशाली की भाषा समझी जाती है, इसके अंदर शक्ति होती है, उसके तो इशारे समझे जाते हैं, भाषा तो क्या है। तो देश शक्तिशाली बना लीजिए, पूरी दुनिया हिंदी समझेगी, अभी तो समझ रही है, हम तो जहां जहां समझाने जाते हैं वो ढंग से समझती है। और बताइए सर, आपका तो मैं बता रही हूँ व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप तो जो समझाना चाहें वो कैसे भी किसी भी तरह समझा ही सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगी वरिष्ठ समन्वयक श्रीमती साधना चौधरी मैम से कि मैम प्लीज अपना प्रश्न आप रख सकती हैं सर। मैम एक क्वेश्चन बाद में मैं भी पूछूंगा, नवीन कौशिक। ओके, श्योर सर, श्योर। Thank you very much, Vandana ma'am, to give me this opportunity. विश्वास जी, आपको सुनने के बाद तो शब्द बिल्कुल खत्म भी हो चुके हैं। इवन जो मैंने क्वेश्चन लिखा था ना, ऑलमोस्ट आप उसका आंसर भी दे चुके हैं, बट मुझे फिर भी पूछना है, जहां से आपने शुरू किया था, मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। आपने शुरू किया था संस्कृति, संस्कार, सहिष्णुता, इनका हास हुआ है, और उसके बाद आपने बीच में एक एग्जाम्पल दिया था कि बीए वो बच्चे करते हैं जिन्हें कहीं और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक गजल सुनी थी, उसकी 2 लाइनें हैं जो एक टीचर के और एक स्टूडेंट के दोनों के भावों को व्यक्त करती है। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता भी नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं।
देखिए, कृष्ण बिहारी नूर साहब की गजल का हिस्सा है जो आपने सुनाया, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन में, बीए में, एमए में हमें वो बच्चे मिल रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपने सामाजिक व्यवस्था में पैसे को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर दिया है। आपने साधन को महत्वपूर्ण कर दिया। आप में से जितने सारे लोग हैं मुझे बता दीजिए कि आज आपकी छुट्टियां मसूरी में बीतती हैं, जो कि मोदी नगर के पास है, नैनीताल में बीतती हैं, कुछ लोग गोवा जाते होंगे, कुछ और लोग विदेश जाते होंगे, मैं भी जाता हूँ छुट्टियां मनाने के लिए। क्या आपको इतना रस आया जो आपको छठी क्लास में बुआ के घर रहने में आया था, जो मुझे आया था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सरदना के पास, या मामा के घर रहने में जो मजा आया था, या चाचा के घर रहने में जो मजा आया था, उससे तय होता है कि आनंद जो है वो साधन में नहीं है, वो साधना में है, वो साध्य में है। तो हमने सब चीजें क्या कर दी है? पैसे से कर दी है। देखो, कलेजे पे हाथ रख के बताओ, सारे अध्यापक बैठे हो, महिलाएं विशेष रूप से बैठी है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, गांव में देखा, आपने भी देखा होगा। इनकम टैक्स विभाग के इंस्पेक्टर से लड़की की शादी तय करके आए हमारे एक सज्जन थे पड़ोस में, और उनकी लड़की पीएचडी थी, और वो मेरे पिताजी से कह रहे थे, भाई साहब ऐसे ऐसे शादी तय कर दी है ममता की, और लड़का वैसे तो भाई साहब सेकंड ग्रेड है, इंस्पेक्टर है, नो तनख्वाह तो ममता से कम है। ममता जी जो थी वो डिग्री कॉलेज में पढ़ाती थी, ममता से कम है, लेकिन भाई साहब ऊपर का ठीक ठाक। मतलब पहले दिन आप अपनी बेटी को रिश्वत का अन्न खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बिल्कुल, और इसको सामाजिक मान्यता दिला रहे हैं। आप कह रहे हैं छाती ठोक के, और पूरा देश स्वीकार कर रहा है, सारा समाज स्वीकार कर रहा है। मैं बहुत छोटा था, पिलखवा नामक कस्बे में मैं रहता था, हमारे यहाँ के एक सज्जन ने बैंक से लोन लेके 2 फैक्ट्री लगाई, और उसमें थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला करके उन्होंने बाद में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, और वो पैसे को डकार गए। उनकी एक बेटी मेरे साथ पढ़ती थी, उस बच्ची का कोई दोष नहीं। और मेरी दादी और मेरे दादा, जिनको पता था, जो कस्बे में सब बात जानते थे, वो मुझसे कहते थे कि फलाना दिवालिया एक बच्चों के साथ घूमे है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। यानी कि सरकार का पैसा लेकर, बैंक का पैसा लेकर, लोगों का पैसा लेकर अपनी उन्नति के लिए डकार जाना सामाजिक बहिष्कार का अंग था। आज तो सबसे बड़े आदमी है वो, उनके साथ फोटो है भाई, वो गॉड ऑफ गुड टाइम्स है, उला लाला उला लाला। दुनिया देश की सारी पार्टियों के पॉलिटिकल लीडर उनके बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। उनका कैलेंडर हर हीरो के घर में मिलता है, जिसके घर में जाता हूं मैं, उला लाला का। एक वो नीरव मोदी, ये सारे बड़े लोग हो गए, क्योंकि आपने साधन को इतना महत्वपूर्ण कर दिया। कुमार विश्वास बड़े क्यों है? मर्सिडीज, अरे मर्सिडीज थोड़ी कुमार विश्वास पे चलती है भाई। मैं तो रोडवेज की बस में भी चला हूं, और तो और छोड़ो, मैं तो पिलखवा से भोजपुर में जो डग्गा मारो छोटी वाली बस आती है मैटाडोर, उसमें भी चला हूं, तब भी तो मैं कुमार विश्वास था। ये अच्छी वाली कविताएं मैंने तो उन्हीं दिनों लिखी होंगी, बगल में बकरी चढ़ी हुई है, भोजपुर उतरेगी, जहां से कालाखंड लेनी है मुझे, इस मर्सिडीज एस क्लास में थोड़ी लिखी, यूरोप के प्लेन में थोड़ी लिखी, चार्टर जहाज में थोड़ी लिखी। तो आपकी साधना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सबने सोच बना विश्वास जी, उनके घर में ऐसा है, इनके घर में ऐसा है, कितने इंच का टीवी है, कितने इंच का फ्लैट है, कितने स्क्वायर फीट का वो है, अंदर का अनहद नहीं जागता है। और ये शिक्षकों आपकी जिम्मेदारी है, ये साधना जी आपकी साधना का अंग है कि आप अपने विद्यार्थियों में आत्मबल भरें जी, कि फकीर के चेहरे पर भी वो मुस्कुराहट हो कि अमीर शर्मा जाए। मेरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है, बाल गिर गए, गज्जे हो गए, इम्प्लांट करा के ला रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये शिक्षा में भी है, ये सौंदर्य में भी है। पूनम जी ने पढ़ा होगा विज्ञान शाकुंतलम, पहली बार जब गया दुष्यंत कड़व के आश्रम में, उसने शकुंतला को वलकल में देखा तो दिमाग खराब हो गया। उसने अपने दोस्त से कहा, जो उसके साथ गया था, कवि मित्र उसका, उसने कहा कि ये अधिक मनोज्ञा वलकल है ना पिता, ये मतलब इतनी सुंदर लड़की है वलकल, और कहा कि मेरे यहाँ जो हीरा पहन के मेरी रानियां घूम रही है वो इसके सामने कुछ नहीं लगती, वलकल पहन रखा है। तब उसने जवाब दिया मित्र ने, किम वही मधुराणाम मंडने नाकृति ना, जो मंडन आकृतियां होती हैं, जो अंदर से सौंदर्यशाली चेहरे होते हैं, उन्हें किसी प्रकार के आभूषण की आवश्यकता नहीं, उन्हें किस प्रकार के फेस लिफ्ट की, लिप लिफ्ट की, बोटेक्स के इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। मदर टेरेसा को क्या बोटेक्स लगाएंगे? बिल्कुल। उनकी झुर्रियों में मनुष्यता मुस्कुराती है। गांधी के चरणों में क्या बोटेक्स लगाएंगे आप? उनके पोपले मुंह से विश्व का दर्शन निकलता है, उसमें क्या बोटेक्स लगाएंगे आप? अंदर की जो ज्वाला है, अंदर की जो अग्नि है, अंदर का जो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो चेहरे पर दिखाई देता है। तो साधना जी, साधना सिखाइए बच्चों को। जी बिल्कुल, टीचर्स अपना काम कर रहे हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था कि जो ये बिगड़े हुए समाज का स्वरूप है,
जैसे कलाम साहब ने भी कहा है कि सफलता को पैसे से, सुंदरता को रंग से और शिक्षा को अंकों से नापा जाता है। तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि शिक्षा का स्वरूप बदलने की जरूरत है या उसके क्रियान्वयन शैली को में बदलाव लाने की आवश्यकता है? दोनों। शिक्षा का स्वरूप तो आमूलचूल बदलना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि इस देश की सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। दुर्भाग्य है कि हमारे बहुत पुराने आत्मीय मित्र और मेरे प्रशंसक देश के प्रधानमंत्री जी का भी इस पर ध्यान नहीं। दुर्भाग्य है कि इससे पिछली सरकार का भी इस पर ध्यान नहीं। दुर्भाग्य है कि हमने जो सरकारें बनाई उनका भी ध्यान नहीं। 12वीं पास करके एक डिप्लोमा लिया हुआ एक आदमी मेरा मित्र मंत्री बन गया शिक्षा का, दिल्ली में, उप मुख्यमंत्री है, और उसके वीडियो वायरल कराए जाते हैं पार्टी की ओर से। इसमें दोनों हाथ यूं करके वो एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को हड़का रहा होता है, कहां थे तुम, कैसे नहीं था, क्या लाइट कैसे नहीं चली। अरे गुरु है वो, तो जैसे 650 मुख्यमंत्री पैदा कर सकता है। उसे अपने आत्मबल का ज्ञान नहीं है, अभी पता नहीं है उसे, कर दिए होंगे। तुम केवल निर्वाचितों के एक वोट पाके आ गए हो। आपने देखा कि हिंदुस्तान की सारी बड़ी धार्मिक कथाओं में, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत में हो, बड़े से बड़ा चक्रवर्ती राजा जब किसी ऋषि के आश्रम में घुसता है तो सबसे पहले अपना मुकुट उतार के रख देता है, अपने धनुष्माण निकाल देता है, अपने कवच कुंडल अपने निकाल देता है, अपनी चप्पल उतार देता है, फिर अंदर घुसता है। महर्षि कर्ण के आश्रम में दुष्यंत प्रवेश करता है, राजा जनक प्रवेश करते हैं महर्षि जमदग्नि के आश्रम, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट। और यहाँ उल्टा ही होता है। यहाँ राजा के क्या छोटे से विधायक के दरबार में भागे चले जाते हैं प्रोफेसर साहब, या प्रधानी का इलेक्शन लड़ लेते हैं प्रोफेसर साहब, या प्रोफेसर साहब नायब तहसीलदारी के लिए प्रोफेसरी छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर शिक्षक को ये आत्मबल नहीं है, शिक्षक के अंदर ही ये आत्मबल नहीं है कि वो जामवंत है, वो युग के नए हनुमान तैयार कर सकता है, तो हनुमान कहां से तैयार करेगा? फिर तो उछल कूद करने वाले और दल बदल करने वाले लंगूर पैदा होंगे। तो शिक्षा तो बदलनी ही पड़ेगी। आज बदले, कल बदले, ये सरकार बदले, आप सरकार में आए, कोई और सरकार में आए, हमसे सुन के कोई बच्चा नया प्रभावित होकर आए, ये तो बदलनी ही पड़ेगी। लेकिन उसका क्रियान्वयन भी बदलना पड़ेगा कि शिक्षक को गुरु होना पड़ेगा, और शिक्षा को विद्या होना पड़ेगा, और एजुकेशन को लर्निंग होना पड़ेगा। इसी के सहारे आप विश्व में टिक पाएंगे और इसी के सहारे रास्ता निकलेगा। अंतिम प्रश्न बहुत लंबा हो गया भैया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी भैया, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, नवीन का पुरातन पूछिए। नवीन जी भैया नमस्ते। सबसे पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रयास है, और नवीन ने इस प्रयास के लिए मेरे बड़े वाले भाई जो हैं उनके हाँ जी सर, बिल्कुल। जी भैया, भैया आपकी जरूरत स्कूल के बच्चों को बहुत ज्यादा है। मैं देखता हूँ, मैं पब्लिशिंग कंपनियों में काम किया है मैंने। हिंदी की जो बुक्स में स्कूल में लेकर जाता हूँ, जो और एनसीईआरटी हमारे बच्चों के लिए किताबें छापती है, उनकी क्वालिटी कंटेंट नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की पूरी जनसंख्या में हिंदी को माँ कहने वाला आपके अलावा कोई नहीं है। मैं अपनी गारंटी लेकर कहता हूँ, है ना भैया, हिंदी को माँ कहने वाला कोई नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज जो हमारी जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ आप लिखिए, जो वो पूरे साल अपने पाठ्यक्रम में पढ़ सके। मेरी तरफ से भी निश्चित रूप से। मैं नवीन ने जो कहा है, नवीन तो बिल्कुल अनुज की तरह है, अगर उन्होंने कहा है तो ये उनका आग्रह जो है ये स्नेह भी है, प्रेम भरा भी है। और मैं कोशिश करूंगा, मैंने उनसे वादा भी किया था कि मैं जो है जब ये सब नॉर्मल हो जाएगा तो बच्चों से मिलने के लिए भी आऊंगा, एक कार्यक्रम वहां भी करूंगा, और कोशिश करूंगा कि अगले सत्र तक के लिए कुछ पुस्तकें ऐसी तैयार करने जो न केवल आपके यहाँ बल्कि छठी 7वीं 8वीं के बच्चों में सब जगह जाए। देखिए, हमारे मानक बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं कल परसों एक भोजपुरी की एक लोरी सुन रहा था, आपने भी सुनी होगी। वो एक गौरैया की कहानी थी कि दर्जी के पास गौरैया पहुंची, उसने कहा कि दर्जी छत में मेरा घोंसला था, घोंसले में 2 बच्चे थे, बच्चे चूचू करते थे, अब वे वहां नहीं है ना। भोजपुरी में कहानी आती है कि एक लकड़ी की फांस के बीच में चिड़िया का दाना फंस गया। वो बढ़ई के पास जाती है, बढ़ई नहीं मानता उसकी बात, तो वो आग के पास जाती है, आग उसकी बात नहीं मानती, तो वो समुंदर के पास जाती है, समुंदर उसका बात नहीं मानता, तो वो हाथी के पास जाती है कि समुंदर को बिल्ली, हाथी उसकी बात नहीं मानता। आखिर में वो चींटी के पास जाती है, और चींटी कहती है कि हाँ मैं तेरी बात सुनती हूँ, बता। और चींटी हाथी की सूंड में चढ़ती है, हाथी परेशान होता है, कहते कैसे बचूंगा, बोले समुद्र को धमकी दे, पी, समुद्र को पीने लगता, समुद्र कहता मुझे बचाओ, बोले आग को कर, आग से बात करती, बोले तू लकड़ी पे जा, लकड़ी पे जाती है, बोले तू बढ़ई पे जा, और आखिरकार उसे दाना मिलता है। ये छोटी मोटी लोरी नहीं है जो माँ ने सुनाई है, ये एक सर्वहारा की, एक चिड़िया की, जिसके पास चोंच के अलावा कोई हथियार नहीं है। ये उसके सत्याग्रह की कहानी है कि अपने साथ वो सबसे दलित व्यक्ति को मिला गया। चींटी से ज्यादा दलित कौन है? जिसको कुचलने से पहले देखा तक नहीं जाता है, पैर चलने नीचे कुचल गई,
उस चींटी को लेकर दुनिया के पंचभूतों में से 3 को, अग्नि को और समुद्र को और जंगल को, तीनों को वो हरा देती। तो ये लड़ाई की कहानी, हमारे यहाँ ये कहानियां थी, हमारे यहाँ ये डोरियां थी। अब हमें क्या सिखाया जा रहा है? अब हमें सिखाया जा रहा है कि एक आदमी है, वो एक स्कूल में जाता है जादू के में, उसको एक झाड़ू मिल जाती है, उसे टांगों के नीचे लगा के उड़ा फिरता है, वो सब कुछ कर देता है। हमने भी पैदा किया है टांगों के नीचे झाड़ू लगाने वाला, वो भी उड़ा फिरता है। ये झाड़ू लगा के उड़ने फिरने की हमने कहानियां बना दी, बच्चा ऐसा ही हो गया। तो बच्चे का मनोभाव बनाने के लिए, बच्चे की मानसिकता बनाने के लिए, उसको क्राफ्ट करने के लिए जैसे नींव लगाई जाती है और ऊपर तक मकान उठता है, इसमें छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे किस्से, ये छोटी छोटी लोरियां, छोटी छोटी कविताएं, ये आवश्यक है। और मैं गंभीरता से इस पर सोच रहा हूँ, और ईश्वर चाहेगा और सरस्वती चाहेंगी तो जरूर ये काम करेंगे। धन्यवाद विश्वास जी। मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, पर 5 मिनट और लेना चाहूंगी मैं आपके। एक एक्चुअली आपके चाहने वाले इतने हैं सर, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं रोक नहीं पा रही हूँ। मैं आग्रह करना चाहूंगी दीप्ति पांडे मैम से कि वो अपना प्रश्न सर के सामने रखें। चलिए अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। दीप्ति मैम अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने बहुत अच्छा जो मोटिवेशनल स्पीच दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा भी जो प्रश्न है ना वो कुछ पूनम मैम जैसा मिलता जुलता ही है, लेकिन मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी इस विषय में कि हिंदी का भविष्य, जिसके बारे में प्रख्यात आलोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने चर्चित निबंध हिंदी का भविष्य में लिखा है उन्होंने कि यदि हिंदी के विकास में अंग्रेजी का व्यवधान न हुआ होता तो हिंदी इस देश की जन भावना को जिस रूप में प्रकट कर रही थी उसका आशय कुछ और होता। तो सर वर्तमान काल में हिंदी की दशा जो है वो बहुत शोचनीय है। विद्यार्थियों के अंदर जो है वो हिंदी भाषा को लेकर कोई भी उत्साह नहीं होता है, उनके अंदर आदर सम्मान नहीं है। उनके उत्साह वर्धन के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम हिंदी पढ़ाते हैं, हम अपने विषय को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के अंदर सर ये भाव नहीं आते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए दीप्ति, मैं सदा ये बात कहता हूँ कि भाषाएं और माताएं ये शामियानों से बड़ी नहीं होती, ये बेटे बेटियों से बड़ी होती। जो माता बड़े तपस्वी अच्छे बेटे पैदा कर दे उसका सम्मान होता है। रामचरितमानस प्रारंभ करते हुए गोस्वामी जी ने भगवान राम के अलावा उनके परिवारजनों की वंदना की है। उसमें माता कौशल्या की प्रशंसा करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, बंधु कौशल्या दिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। जिसकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल गई है उस कौशल्या माँ, प्राची दिशा जैसी। प्राची दिशा जैसे सूर्य निकलता है, और कौशल्या की कोख से कौन निकला है? सूर्यवंशी राम निकले। वंदो कौशल्या दिशि प्राची। अगर हिंदी हर साल, हिंदी हर मोर्चे पर, हिंदी हर दशक में एक नोबेल पुरस्कार पैदा करे। बांग्ला क्यों बढ़ी है? इसलिए थोड़ी कि बांग्ला इतने द्वारा लोगों द्वारा बोली जाती है। बांग्ला इसलिए बढ़ी है कि रविंद्र पैदा करती है, वो शरचंद पैदा करती है, वो बंकिम पैदा करती है, वो महाश्वेता पैदा करती है, वो इतने बड़े बड़े लेखक पैदा करती है, इसलिए बांग्ला बड़ी भाषा है। संस्कृत क्यों बड़ी है? संस्कृत इसलिए बड़ी है क्योंकि कालिदास पैदा करती है, बहुभूति पैदा करती है, बाण भट्ट पैदा करती है ना, भारवी को पैदा करती है, कलहण को पैदा करती है, इसलिए बड़ी भाषा। ऐसे ही अंग्रेजी क्यों बड़ी भाषा है? वो कीट्स को, ब्राइनिंग को, शैली को, टेनिसन को, शेक्सपियर को, हेमिंगवे को, बड़े बड़े लोगों को पैदा करती है, इसलिए अंग्रेजी बड़ी भाषा है। तो हिंदी अगर बड़े बेटे पैदा करे, हिंदी अगर बड़ा उद्देश्य पैदा करे तो बड़ी हो जाएगी। और आज ऐसा नहीं है, मैं हिंदी के बिना किसी का काम नहीं चलता। मैं तो फेसबुक के साथ भी काम कर रहा हूँ आधिकारिक रूप से, ट्विटर के साथ भी काम कर रहा हूँ, अन्य एप्स के साथ भी काम कर रहा हूँ। हिंदी के लोग द्वार पर सब है। आप देख लीजिए, देश का सबसे बड़ा जो चर्चित महानायक है अमिताभ बच्चन, उनके अभिनय और लंबे रन के अलावा हिंदी बोलना उनका, और उच्चारण के साथ हिंदी बोलना, चूंकि वो कवि के पुत्र हैं और उस बैकग्राउंड का, उस पृष्ठभूमि का उन्हें फायदा मिला है, ये बहुत महत्वपूर्ण अंश है। जबकि उनके पीछे आए हुए लोग जिन्होंने ज्यादा लोकप्रियता पाई उनके सामने, चाहे शाहरुख खान साहब हो, वो उतनी लोकप्रियता और उतना आदर नहीं कमा पाए जितना इन्होंने कमाया। तो हिंदी के बिना किसी का काम तो चलता नहीं, और मुझे तो कोई हिंदी का भविष्य खराब नहीं दिखता। मैं तो उन कुंठित हिंदी के मठाधीशों की तरह नहीं हूँ जो 24 घंटे यही
विधवा विलाप करता रहूं कि साहब हिंदी मर रही है, हिंदी गई, हिंदी बचाओ। हिंदी हमें बचा लेगी, हम क्या हिंदी को बचाएंगे? भाषा में जो आनंद है वो तो अनहद बना रहेगा, कुछ भी करते रहे, कहीं नहीं जा रही। थैंक यू सर। सर आपका बहुत आभार। मुझे लगता है कि आज बहुत लंबा संवाद हो गया। वंदना सर लेकिन मिलेंगे आपसे। सर नहीं सर, देर से आप सबसे बात कर रहे हैं सर। आपसे वो 4 लाइनें सुने बगैर हम आपको जाने नहीं देंगे। कोई दीवाना कहता है वो सर, वो तो उसके बिना इस कार्यक्रम का अंत नहीं हो सकता है सर। बहुत अच्छा हो गया कि मैं आखिर में सुना देता हूँ, और मैं भी चाय भी पी रहा हूँ, तो एक तरह से चाय पे चर्चा भी हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुन लीजिए और उसके बाद फिर बिल्कुल सर हाँ हमारा विराम लेते हैं। मैं भी जरा गौशाला में अपनी गायों को देख के आऊँ कि वो क्या क्या कर रही हैं। उनके साथ रहना और हाथ फिराना बहुत अच्छा अनुभव होता है उनसे। अच्छा, बहुत आतुर हैं आपके मुंह से ये सुनने के लिए, और कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है मुझे चैट बॉक्स पे। रिक्वेस्ट तो जब जैसा वादा किया है नवीन से, आके ही वहाँ पूरी करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। और अभी अंतिम रूप से 4 पंक्तियां सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपसे मिलना चाहूंगा। सुनिए। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अब वाह वाह तो आप अपने घर से ही करिए, मुझ तक तो कहाँ पहुंचेंगे। कोई अनम्यूट एवरीवन। कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो आशा करता हूं कि जिस नए भारत की और जिस विश्व भारत की चर्चा हमने पिछले 1.25 घंटे में की, उसमें विशेष रूप से हमारे अध्यापक साथी जितने भी हैं, जो अध्यापिकाएं और अध्यापक जुड़े हुए हैं, वो सब इसे विशेष रूप से इस पर सोचेंगे। फेसबुक पर और ट्विटर पर मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आपकी प्रतिक्रिया मिलती रहेंगी। मैं भी आज के कार्यक्रम के विषय में जरूर टिप्पणी लिखूंगा अपने इंटरनेट परिवार पर, और जैसा नवीन ने वादा लिया है 2 बात जरूर करेंगे। एक तो लिखेंगे जरूर ऐसी कुछ छोटी पाठ्य पुस्तकें जो बच्चों के पास कुछ पहुंच सके, और एक आपके परिसर में भी जरूर उपलब्ध होंगे। आपने मनोयोग से मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस बीच में कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको अनुचित लगी हो तो उसको क्षमा कर दीजिए, उसको विसरा दीजिए। शुभ शुभ और मंगल मंगल स्वीकार करिए। ओके भैया, थैंक यू। धन्यवाद आपका। आभार सर, आभार सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिसेस विभा त्यागी मैम, हेड मिस्ट्रेस पेटी पेंगुइन ब्रांच, to propose her vote of thanks. Vibha ma'am. Okay, thank you वंदना मैम। नमस्कार, मैं विभा त्यागी इस वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मोदी समूह के प्रबंधक महोदय डॉक्टर डी.के. मोदी जी के माध्यम से हम समय समय पर इस प्रकार के वेबिनार्स को देखते और सुनते रहते हैं, जिनके द्वारा हम अपने कौशलों में वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर डी.के. मोदी सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं मोदी समूह के सीईओ श्री मेघा शर्मा जी को धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके अथक प्रयासों के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए गए हैं। Am I audible? Yes, ma'am. Okay. तो इसके पश्चात मैं माँ हिंदी के उस बेटे का धन्यवाद करना चाहूंगी जिसने हिंदी और हिंद का सम्मान तथा गौरव भारत ही नहीं अपितु अन्य देशों में बल्कि विश्व में भी बढ़ाया है। कोई भी हिंदी मंच इनके बिना उसी प्रकार से सूना है जैसे हंसों के बिना कोई मनोरम सरोवर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर कुमार विश्वास जी की। आज के इस कार्यक्रम की आन बान और शान डॉक्टर कुमार विश्वास जी, आपका तहे दिल से मोदी फाउंडेशन की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारे यहाँ टीचर्स को मार्गदर्शन दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्रीमती गुरमीत गुप्ता जी का हृदय की गहराइयों से शुक्रिया व्यक्त करना चाहती हूँ, जो इन विषम परिस्थितियों में भी किसी पर्वत की तरह अपने कर्तव्य पथ पर डटी हुई हैं और हम सभी के लिए वट वृक्ष की तरह संरक्षक बनी हुई हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक श्री नवीन कौशिक जी, ट्यूटर फाउंडेशन की ट्यूटर पब्लिकेशन का भी मोदी फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत आभार। मोदी ग्रुप की सभी संबद्ध
संस्थाओं के निर्देशकों को भी मेरा तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें कृतार्थ किया। मैं मंच संचालिका वंदना मैम का भी कार्यक्रम को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद वंदना मैम। हमारी तकनीकी टीम यानी IT डिपार्टमेंट, उसका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनके बिना ऐसे कार्यक्रमों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एंड ऑल्सो थैंक यू टू मिस्टर मनीष एंड मिस्टर अनुज, थैंक यू सो मच। अपने मोदी फाउंडेशन के समस्त अध्यापक, अध्यापिका तथा अतिथि गणों का भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद। थैंक यू सुधा मैम, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सभी का दिन मंगल हो। थैंक यू एवरीवन।